This started my recording, conference will now be recorded. and you can and you can understand that cloud computing is more of a general term. Okay, general term means in cloud specifically, you cannot say that cloud is itself is some technology. So cloud computing is a general term in the sense like, for example, nowadays everybody is saying big data is into much demand. So hopefully everybody might have heard about big data. Now, what do you mean by big data? Big data is a large scale data processor. Okay. One of the technology which is famous is known as Hadoop. Hopefully everybody might be aware about Hadoop. Yes. Okay. Okay. So you people are aware about Hadoop, right? Hadoop is famous in the world for big data. Okay. So now talking about cloud computing. In cloud, which is a general term, the backend of the cloud is working on virtualization. It is working on virtualization. Now, those people who are joining this course, the first thing is that most of the people who are joining this course, they should be aware that whenever you are talking the word cloud computing, it is a generic term, and the backend of the cloud is virtualization. And when you see that backend of the cloud is virtualization, it means that in the backend there are servers, network, storage, that is nothing but complete infrastructure of IT is available in the background. Okay, so basically this course, those people who have paid the fees, consider they most of the people have paid the fees because the prerequisite was that due to corona, okay, we are going in live first time for a live training. Earlier we had conducted, I myself had given training for 5,000 plus candidate on VMware and AWS, but the training was always used to be a classroom training. And now because the requests are coming that people, sir, we are in home and we want to study, so finally we decided to have a online training, and this is a first training for online. And because of the people demand, we had strictly put a limit of 5 candidates, because in GoToMeeting we have seen some voice lag issues, and other software we tried several. That's the reason we took one this audio conferencing bridge from Tata Teleservice. But unfortunately, 3 people are from international, that is fine, but 3 more people are there from India, but unfortunately they are not able to join the bridge call. If they have a good bandwidth at their home, they can they are able to hear me on GoToMeeting, so that's not an issue. By the way, what I was saying that those people who want to join this course, consider you have paid the fees, but not to worry, as you came to know in today's lecture what is cloud computing and who should join this course. You will learn what we are going to learn in this course. So you will get an idea that those person who are IT, who are working in IT and they are system admins, they can go for this course. Why? Because system admins or above system admin, above means team lead hai, project managers hai, IT managers hai, data center managers hai. So for them there is no issue. Why? Because they need to handle the escalation, they don't need to understand the technology, they need to guide the engineer, they need to understand the client requirement. So IT system admin is a basic criteria. It means anybody who is joining today's course should be either Microsoft guy, इट मीन एमसीएससी कम से कम किया होना चाहिए, अगर विंडोज पे काम किया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अच्छी बात है, या लिनक्स का बंदा होना चाहिए, लिनक्स सर्वर ही शुड हैव आइडिया. System admin is having idea either on Windows or either on Linux. Now, if you have the skill set of any of these two technologies, what will happen in cloud computing? We will discuss server, network, infra, storage, everything in cloud. So you will be in a good fashion to understand it easily. Consider करो कि एक बंदा है who is purely a desktop engineer, उसको आईटी इंफ्रा का नॉलेज नहीं है, या गलती से आज के डेमो सेशन में कोई डेवलपर आ गया है, ठीक है. Generally our team, backend team's support team is Mr. Shahabuddin. He is very good into doing the scanning. So first we do the scanning, ask about the profile, and then we give the admission in course. In case अगर किसी को डेमो पसंद नहीं आता है
or he is not belonging to the profile of server, or he's not able to understand the demo, he can ask for the fees refund, because today the first lecture is a demo session. Okay, so I have clarified who should join, why they should join, because Aptari classes, the main aim is that people should be able to learn. The aim is not to just take out only the money from the people. Though Attari classes is a very stable, with a stable management, and that's the reason our first criteria is that we should deliver the training to the right people at the right time. So basically today I have given you the prerequisite. Now going ahead, the cloud computing. In cloud there are several models available, and these models are nowadays marketed into the market as infrastructure as a service, software as a service, and platform as a service. But as I said earlier, that cloud is a generic term, so infrastructure as a service is a generic term. Take an example. I will give you an example. Take an example that uh, in today's market we all are using electricity, we all are using water, and we all are using gas. Anybody has any issues while live training, they can put in the GoToMeeting chat. Okay, now everybody is using electricity, water, and gas, and if you see this, people are not investing any amount in generating electricity or getting the water or getting the gas. It means this model which we are using nowadays, where there is no investment. What do you mean by no investment? Consider करो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. What you will do? You will go to service provider. एक नया बिल्डिंग बनता है and they require a water line. So what they will do? Builder will submit an application to MCG. अगर कंसीडर करो आपका बिल्डिंग नहीं, आपका रो हाउस है, बंगलो है. आई एम बिलोंग बेसिकली फ्रॉम गुजरात, राजकोट. And if you see that in today's market, when we go to the city like Rajkot, there is no concept of such big buildings. They have row houses. अगर किसी का रो हाउस है तो वो जाके अपने कॉर्पोरेशन में, गुजरात कॉर्पोरेशन में जाके अपना एप्लीकेशन देगा. पुणे में कोई रहता होगा बंदा, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेटर देगा, मुझे वाटर का लाइन चाहिए. Nowadays in India, people are using 60-70% people are using still gas bottles, but there are few houses which are connected via pipeline of gas. Gujarat, there is an old model of pipeline of gas, and in Mumbai those people stay in Jogeshwari and Andheri and this western line, they have a good connectivity of gas pipeline. If you see this, these all are nothing but service providers, and we are using electricity from service provider, water given by MCGM, and gas is also available via pipeline from MCGM. It means what we are doing, we are getting everything as a service. It means in electricity model we have not done any investment. If you see in the back end, Reliance, Adani, Tata Power, these companies have invested crores of rupees, millions of rupees, and done an investment. And after doing an investment, they have hired thousands of people to make sure the electricity line, the water line, the gas line reaches every home, the roads are digged, the infrastructure is made available for the people. And at the user end, they have a plan of billing where they will put the meter. Again, a new staff is required to record the meeting, to print the bill and send. What we are doing, we have done no investment for electricity, water, gas, just billing is done to us. This model, that without investment you take a service from a service provider and you pay only when you use it, that model is known as pay as you go model. Okay, so when you are using a pay as you go model, it is known as pay and use it, right? No investment. When you have not done any investment, you use directly and you pay it. This model, in simple word, is a cloud model. So hopefully everybody is getting an idea. In cloud,
instead of you purchasing and generating electricity, digging a well to get the water like in olden times, having a coal or some other biochemical methods to get the gas, these all methods are nowadays going out and people are using everything over the cloud as a service. Getting the point? It means electricity, if you see over here, this is my example, electricity, water, gas, there is no investment. Another benefit of this is that if you see carefully, there is no tension. Investment तो नहीं किया, ठीक है, but tension भी नहीं है. I have not bought any equipment, investment मेरा है ही नहीं. तो सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर पूरा टेंशन है. The tension is the service provider make electricity up, give 24/7 connectivity, and as soon as the connectivity stops, automatically they will come to know that connectivity stop हो गया है. ओके, अभी हमको बिलिंग स्टॉप हो जाएगा. जैसे ही कनेक्टिविटी गया क्लाउड का, उसको मालूम है भाई पब्लिक पैसा बंद करना बंद कर दी, क्योंकि as soon as electricity goes, your metering goes down. So in short, what is a cloud model? Cloud model is a very simple model where you take an service from a service provider. Okay, another thing, when you take a service, there is no investment, there is no tension. Another thing is that no maintenance. Downtime का टेंशन किसके पास है? सर्विस प्रोवाइडर. इन्वेस्टमेंट किसको करना है? सर्विस प्रोवाइडर. मेंटेनेंस किसको करना है? सर्विस प्रोवाइडर. पब्लिक पीपल हायरिंग किसको करना है? पीपल हायरिंग हु विल डू? सर्विस प्रोवाइडर. इसका मतलब ये मॉडल अगर कहीं पर भी मिलता है आपको, whether it is an IT or non-IT, this model is known as a pay-as-you-go model and also known as a cloud model. Okay, so I have given a crystal clear example. Now without any delay, I can just say today we are in cloud. Electricity as a service, we are using water as a service, and gas as a service. It means I can say we are using aas, vas and gas. Okay, and we are by default by birth in cloud. Okay, those people who have joined in today's training, everybody is aware that by birth when we came into this world, electricity fan was working. शायद ऐसा कोई बंदा नहीं जो आजादी के पहले इस क्लास में ज्वाइन हुआ है, ठीक है ना. So everybody is aware कि electricity water pipeline में आ रहा है, गैस नेटवर्क से आ रहा है, तो हम लोग क्लाउड में. अगर किसी को गैस नेटवर्क से नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, वी आर स्टेइंग इन मुंबई बट देयर इज नो गैस कनेक्टिविटी ओवर द क्लाउड, so we are using gas bottle. It means we are using a non-cloud model. नॉन क्लाउड मॉडल का मतलब ये हो गया कि आपको पता चलता है कि व्हेन यू ऑर्डर अ गैस बॉटल, सबसे पहले आपको पैसा भरना है. क्या करना है? इन्वेस्टमेंट. दूसरा प्रॉब्लम, इन्वेस्टमेंट कर दिया गैस बॉटल पे, आ गया गैस बॉटल. नाउ इन योर होम देयर आर 4 people, 5 people. In a family there are 4 to 6 people. Generally if you have 4 to 6 people, your gas bottle will go for how many days? Can anybody tell me? सब लोग है कि नहीं भाई? खाली मैं बोल रहा हूँ. Maximum 20 to 25 days. How many days gas bottle will work, my dear friends? 40 days, 40-45 days. Okay, 40-45 days, 30 days कोई बोल रहा है गैस बॉटल चलेगा, राइट? अब ये गैस बॉटल अगर 30-35 days, 40 days चलेगा, तो बताओ, if there are, assume करो कि 4 to 6 people in the family, the gas bottle goes for 30 to 40 days. Consider करो कि अगर आपके घर पे 40 गेस्ट अचानक आ गए. If there are 40 guests coming at your home, now what you will do in such a scenario? If 40 guests comes to your home, from where you will cook the food? और जब गेस्ट आते हैं तो क्या होता है? When guest comes over at your home, then what happens? People will cook more food, more good dishes will be cooked. So hopefully आपका गैस का बॉटल 40 गेस्ट आ गए, 2 दिन में खत्म हो गया. And now you call the gas provider, he will say, okay, you logged a call today, tomorrow or day after tomorrow you will get a gas bottle. You will say, मेरे को दोपहर में खाना खिलाना है. वो बोलेगा भाई तुमको किसी सर्विस प्रोवाइडर को पकड़ना पड़ेगा जो तुमको खाना बना कर दे दे, like पर्शियन दरबार होटल, food as a service. Okay, you order and you get it. Okay, but gas bottle का problem है कि you are not getting unlimited resource. इसका मतलब resource are not available on demand. This is a non-cloud model. Biggest disadvantage of a non-cloud model that you are not getting resource availability on demand.
कंसीडर करो कि आप क्लाउड में कनेक्टेड, राइट? अगर आप क्लाउड में कनेक्टेड हो और आपको कोई बोलता है कि मुझे 100 बंदों का खाना पकाना, नॉब है गैस का, अगर गैस का नॉब है, आपने जैसे ही गैस का नॉब ऑन किया, गैस चालू, आप 1000 आदमी को खाना खिलाओ, इवन इफ यू कुक द फूड फॉर 100 200,000 people, nobody will tell you अरे why you have cooked the food for so many people. It means that in general words, the basic logic is that when you connect to some service provider gives you unlimited resource, yes, but साथ में एक वादा है, pay as you go model. पे एज यू गो मॉडल मतलब है कि भाई मैं रिसोर्स तो अनलिमिटेड ले सकता हूं, बट अगर मैं यूज करूंगा तो मैं पे भी करूंगा। अब प्रॉब्लम नहीं है, घर पे बंदे आए, खाना खिलाना है, तो प्रॉब्लम नहीं है, वी आर रेडी टू पे। सो आपको समझ में आ रहा है, आई एम कंपेयरिंग अ क्लाउड मॉडल एंड अ नॉन क्लाउड मॉडल इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। व्हेन यू इन्वेस्ट, यू बाय द रिसोर्स, यू गेट अ लिमिटेड रिसोर्स आर नॉट अवेलेबल ऑन डिमांड, मेंटेनेंस, इन्वेस्टमेंट, पूरा टेंशन आपके पास है। ये मॉडल, क्लाउड मॉडल, जब आप सर्विस प्रोवाइडर से लेते हो, नॉन क्लाउड मॉडल जैसे आप जनरेटर लेते हो, वेल्डिंग करते हो, या फिर आप गैस का बॉटल खरीदते हो, नॉन क्लाउड मॉडल जिसमें पूरा टेंशन वगैरह आपके ऊपर होता है। नाउ पीपल इन टुडेज मार्केट आर यूजिंग क्लाउड मॉडल एवरीवेयर। यू सी ना, पीपल आर यूजिंग कार एज अ सर्विस, यूबर, Ola in India. In Dubai also you have a postpaid cars, and Abu Dhabi people have connected. Somebody is from UK, they might be having some sort of car options available. What you are doing, you are not investing on car, you don't have a driver, no need to manage, no need to take tension, everything as a service. Okay, when people started using everything as a service, then a demand came into the market why IT cannot go over a service. So in market, people, what company like AWS, today our demo is on AWS. AWS everybody knows is from a company by the name Amazon. Amazon is a very big vendor, as everybody knows, they do shopping and everything. And Amazon has one IT, they are the leading into cloud market, and they have a product known as Amazon Web Services. AWS stands for Amazon Web Services. Now this company Amazon, they started offering everything as a service in 2006, but they started what? IT related services. And how they started giving the services, they have a web model. इसका नाम क्या है? Amazon Web Services. Amazon ने क्या बनाया? वेबसाइट, काय के लिए? IT सर्विस देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। It means in simple language, Amazon is a company which in the back end has what? Data centers. Those people who have worked in data centers are aware, data center में होता है रैक, रैक के अंदर क्या होता है? सर्वर्स, 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 ठीक है। सर्वर्स को कनेक्ट करने के लिए क्या लगता है? स्विच। डेटा रखने के लिए क्या लगेगा? स्टोरेज। सिक्योरिटी के लिए क्या लगेगा? फायरवॉल्स, राइट? It means in general sense, if I talk, Amazon is giving over the website as a service IT related services. For that they have developed what? Data centers across the globe. Now across the globe, when they have developed, created or built up a good level of data centers, these servers are available in data center. If you want a Windows server, you can request them and you will get an RDP. If you want a Linux server, you can request Linux server, you can get SSH administrative access. ऐसा नहीं है कि Amazon के पास सर्वर है तो Amazon के पास एक्सेस रहेगा, आपके को लिमिटेड एक्सेस मिलेगा, कोई यूजर बना के देगा, ऐसा नहीं। सर्वर आप रिक्वेस्ट करोगे, यू विल गेट फुल एक्सेस टू योर सर्वर। इट मींस इनडायरेक्टली तुमको क्या मिल रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सेम लाइक इलेक्ट्रिसिटी मॉडल, वाटर मॉडल, सर्वर, डेटा सेंटर, पावर, कूलिंग, रैक, स्विच, सब कोई खरीदेगा कौन? Amazon। देगा किसको? आपको, एज अ व्हाट? सर्विस। खरीदेगा वो सब कुछ, आपको कैसे देगा? रेंट पे देगा। इसका मतलब इन शॉर्ट, मंडप डेकोरेटर जो काम करता है वो भी तो क्लाउड का है। वो कुर्सी खरीदता है, टेबल खरीदता है, पर्दा खरीदता है, फोकस खरीदता है। व्हाट इट गिव्स ऑन रेंट। व्हाट डज क्लाउड प्रोवाइडर डज? दे बाय सर्वर, दे बाय स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, कूलिंग, पूरा अरेंजमेंट करता है, और क्या देता है? एज अ सर्विस। सो व्हेन यू से दैट Amazon is giving you IT related service, what service they are giving? One platform is known as, one model is known as infrastructure as a service. As I have shown you on PPT, there are multiple models into cloud. One is infrastructure as a service,
another is known as software as a service, another is known as platform as a service. What do you mean by this? Take an example. I am having one batch sheet with me. This is my AWS batch sheet. Okay, now this is my live batch sheet, and here I can easily see that in my AWS batch sheet I can see that this is an Excel. For example, I will go to another sheet. So I have put in my URL attariclasses.in/bs. This is for a classroom training. As I said earlier that we were full-fledged into a classroom training, and now we are going for the online. Now when we are in the classroom training, there are people because here the session gets recorded in online training and you get the links and everything. But when we go in a classroom training, attariclasses.in/bs, this is my link. Okay, I will just press enter. Now can you see over here in the browser Google Chrome, one spreadsheets open. This is from Google. Similarly, Microsoft Office 365 is a cloud office solution, and Google is having a similar solution, Google Apps. Now this is a VMware batch schedule, this is AWS batch schedule, this is Azure batch schedule, this is MCSE, and this is CCI. But what I mean to say, these are the 5 course offering for classroom training we have. But as of now, consider I want to write something. Hi, how are you? Now whoever has the link to this sheet, ना live he can see. No need to press Control S. Automatically मैंने press किया, save हो गया. अब इसके अंदर जो हमारे नॉर्मल फीचर्स है, बोर्ड, इटैलिक, ये वो, इसके अंदर सब कुछ ये मिल रहा है. But it is available on the browser. See, I have not installed any software. I don't have Excel installed in my machine. I don't have PowerPoint. I don't have Word. I get an attachment over here. I get a link and I start typing it. Hundreds of people can live work on one Excel. This is nothing but a very basic and a very simple example of software as a service. ये सॉफ्टवेयर एक्सेल का है. सिमिलरली गूगल डॉक्स में गूगल शीट्स आता है जिसको पावर पॉइंट बोलते हैं, गूगल एक्सेल, गूगल शीट्स को एक्सेल बोलते हैं, गूगल डॉक्स में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब कुछ आता है. वेयर यू डोंट बाय एनी सॉफ्टवेयर, you don't install any software, and you are getting everything. You don't manage, you don't upgrade anything, everything as a service. मतलब ये सॉफ्टवेयर कहाँ पर इंस्टॉल्ड है? कहीं तो गूगल सर्वर पे. अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का सर्विस यूज किया जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 क्लाउड ऑफिस, तो सारा सॉफ्टवेयर कहाँ पर इंस्टॉल्ड है? एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे. बट माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे इंस्टॉल्ड है. हम लोग ब्राउजर में खाली लिंक डालते हैं और आजकल यूज कर रहे हैं एक्सचेंज एज अ सर्विस, शेयर पॉइंट एज अ सर्विस. गूगल डॉक्स की जगह हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल डॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्स हम यूज कर रहे हैं एज अ सर्विस. तो क्या बेनिफिट हो गया? क्लाउड का बेनिफिट क्या हो गया सॉफ्टवेयर एज सर्विस का? अभी मेरे पास लिंक आया, मेरे पास एंड्रॉइड का मोबाइल है, मैंने ब्राउजर में डाला, वो एक्सेल ओपन हो गया, मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं चेंजेस कर पा रहा हूँ. एंड्रॉइड का फोन है, एप्पल है, iOS है, वर्ड है, लिनक्स का मशीन है, विद ब्राउजर आई कैन यूज इट. पहले जमाने में क्या होता था? एक्सेल इंस्टॉल करना है तो मशीन चाहिए, मशीन चाहिए तो मशीन का प्री रिक्विजिट होना चाहिए, विंडोज होना चाहिए, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं होगा. ये सब बातें खत्म हो गई बिकॉज अभी हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मशीन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है. ओवर द वेब एवरीथिंग यू कैन डू. दिस आर द बेस्ट एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. नाउ कंसीडर करो, इन द पीपीटी आई हैव आल्सो शोन यू प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. These are the generic terms, how people are giving you everything as a service. Platform as a service. Just take one example. पहले जमाने में वेबसाइट पे चैट ऑप्शंस आते थे. ठीक है, एक बंदा वेबसाइट पे गया, उसको एक मैसेज आता है, हाय, वेलकम, हाउ कैन आई हेल्प यू, और कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसको नेम, ईमेल आईडी वगैरह, कुछ किसी में लाइव चैट चालू होता है, वो सबमिट करता है, फिर एक चैट का एजेंट कनेक्ट होता है. ठीक है, और एजेंट उससे सवाल जवाब. Nowadays you have seen this, these options are going, and nowadays chat bot is coming. कितने लोग ये सेशन में जिन लोगों ने चैट बॉट्स देखा है? कैन एनीबॉडी टेल मी, चैट बॉट्स देखा है कि नहीं भाई आप लोग? है पब्लिक लाइव? yes. ओके, चैट बॉट, आईसीआईसी बैंक की वेबसाइट पे जाओ, किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाओ, आपको हर जगह पर चैट बॉट दिखता है ना आजकल. ये जो चैट बॉट्स आपको दिखते हैं, ये चैट बॉट्स क्या है? अगर आप चैट बॉट्स को देखोगे, सो बेसिकली चैट बॉट क्या करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है. आजकल बहुत बड़ा नशा है मार्केट में, अरे क्लाउड डिमांड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिमांड में, मशीन लर्निंग डिमांड में. माय डियर फ्रेंड,
देखो वर्चुअलाइजेशन डिमांड में, मगर उसके लिए स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है, VMware, Hyper-V सेट। वो टेक्नोलॉजी सीखोगे तो आप वर्चुअलाइजेशन में जाओगे। क्लाउड में AWS, Azure फेमस है, तीसरे नंबर पे गूगल क्लाउड आता है, ठीक है। सिमिलर फैशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग डिमांड में, हकीकत में क्या ये कुछ नहीं है। आजकल पाइथन and you can say Ruby and these languages are used into the market. These are programming language। और artificial intelligence मतलब कुछ नहीं है, चैट बॉट में पहले से इनपुट्स डाला हुआ है। इफ आपने C++, बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ा रहेगा, तो आई वाज नॉट अ गुड प्रोग्रामर। अगर मैं प्रोग्रामर होता तो मैं शायद अब तारी क्लास में ना होता और इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रेनिंग ना देता। जो प्रोग्रामिंग में रहता है उसको ये सब काम नहीं करना पड़ेगा, उसको खाली दिमाग लगाना। बाय द वे, हम लोग शायद इस क्लास में भी जितने लोग ज्वाइन है, कोई भी प्रोग्रामर नहीं होगा। अगर प्रोग्रामर होता तो आज अब तारी क्लास में नहीं आता, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रेनिंग ले। सो बाय द वे, जो चैटबॉट्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मतलब आपने देखा रहेगा C++ में एक कंडीशन लूप होता है, इफ व्हाइल। ऐसा कस्टमर ने पूछा तो ये हो सकता है, ये पूछा उसने तो ये ऑप्शन। फॉर एग्जांपल उसने एक कोर्स की इंक्वायरी किया, हाय चैटबॉट बोलेगा हाय वेलकम टू तारी क्लास, व्हिच कोर्स यू आर लुकिंग। उसने बोला क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ऑटोमेटिक उसको AWS और Azure का ऑप्शन देगा। अब उसको AWS और Azure का ऑप्शन दिया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि उससे पढ़ लिया, समझ लिया, बैकएंड में क्या लिखा है, एक प्रोग्राम लिखा हुआ। अब ये हर वेबसाइट पे अगर चैटबॉट चाहिए तो क्या करना पड़ रहा था, हर वेबसाइट के ओनर को क्या हायर करना है, डेवलपर। वो डेवलपर क्या करेगा, उसके FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड आंसर को सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम करेगा। एंड आफ्टर डूइंग अ प्रोग्रामिंग, वो बंदा क्या करेगा कि वो इनपुट्स डाल देगा डेवलपर मोड पे, और वो डेवलपर बाद में टेस्टर के पास जाएगा, वो टेस्टिंग करेगा, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। डेवलपर ने डेवलपर क्या मॉड्यूल, अरे ये पूछता हूँ ये जवाब आता है क्या, ये याद पूछता है ये जवाब आता है क्या, मशीन बराबर लर्न कर पा रहा है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बराबर काम कर पा रहा है क्या, ये बंदे ने ये पूछा तो शायद इसमें इंटरेस्ट होगा। ये आप लोग ने देखा रहेगा, ICICI बैंक में वेलकम बोलते हैं, चेक योर बैलेंस करना है, इंक्वायरी करना है, क्या करना है, बोलते हैं टाइप करते हैं लोन, तो फिर आपको बैलेंस का कभी ऑप्शन नहीं आएगा, लोन की तरफ ही वो लेके जाएगा। अब ये सब होता था। अमेजोन ने क्या कमाल कर दिया, अमेजोन ने बोला चैट बॉट एज अ सर्विस। अब बताओ, इसका है एग्जांपल प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। भाई चैटबॉट बनाने के लिए बैकएंड में कोई भी कंपनी को चाहिए तो उसको सबसे पहले तो सर्वर लेना पड़ेगा, उसके ऊपर एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, डेटाबेस डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन रहेगा, डेटाबेस रहेगा, बैकएंड में एप्लीकेशन के अंदर प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करेगा, डेटाबेस में सबकी जो भी क्वेरीज आएगी वो लॉग होगी, और सर्वर रहेगा, मेमोरी, CPU, कंप्यूट पावर रहेगा, तब तो चैटबॉट चलेगा। और वो चलाने के लिए एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म चाहिए आपको। ये कोई ना कोई सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर है और सॉफ्टवेयर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्लस सॉफ्टवेयर एज सर्विस एक ही पैकेज में दे दिया तो उसको दुनिया बोलती है मेरे दोस्त प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। समझ में आ रहा है? सो क्लाउड इज नथिंग बट ट्राइंग टू गिव यू एवरीथिंग एज अ सर्विस। अमेजोन के पास और एक सर्विस है। अब चैट देखो, अमेजोन में अलग अलग पाथ है। हम लोग का जो कोर्स है वो बोल रहा है AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, जिसके अंदर मैक्सिमम थिंग्स वी विल डिस्कस which are related to IT infrastructure, system admin, data center। अब ये मैंने चैटबॉट एज अ सर्विस का एग्जांपल दिया। इट इज मोर ऑफ रिलेटेड टू अ पर्सन हु इज डीलिंग विद चैटबॉट्स एंड अप्लाइंग टू वेबसाइट। अब उसको बहुत सारे नॉलेज लगता था प्रोग्रामिंग वगैरह का, अभी कुछ नहीं है, नॉर्मल बंदा क्वेश्चन आंसर डाले। आपने देखा रहेगा फेसबुक पे 48 क्लास वेबसाइट पे अगर आप सेंड हाई बोलोगे तो एक चैटबॉट एक्टिवेट होगा। वो चैटबॉट किसी ने नहीं बनाया, मैंने बनाया, और आज नहीं 2 साल पहले 3 साल पहले मैंने डाला। FAQ डाल दिया, क्वेश्चन ये पूछेगा आंसर ये देगा, क्वेश्चन ये पूछेगा आंसर ये देगा, एज अ सर्विस हो गया। अब सॉल्यूशन IT इंफ्रास्ट्रक्चर का बंदा है, इसका तो सर्वर वगैरह बैकएंड में डिप्लॉय करता है वो, मगर जो बंदे लोग डेवलपर थे जो चैटबॉट बनाते थे, अब तो चैटबॉट भी मिलने लगा एज अ सर्विस। अरे गेटिंग द पॉइंट ना? सो याद रखना कि हम लोग का जो कोर्स है वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। चैटबॉट का मैंने जस्ट ऐसे एग्जांपल दे दिया, कोई हम लोग इधर चैटबॉट नहीं बनाने वाले। ओके, ये अगर कोई बंदा है प्रोग्रामर से सॉफ्ट डेवऑप्स से, तो वो पहले प्रोग्रामिंग करता था, चैटबॉट डायरेक्ट मैप करके उसका इंटरफेस के अंदर बैकएंड में FAQs वगैरह सेट करेगा। कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज कभी कभी लगता है अगर चैटबॉट को कस्टमाइज करके। जस्ट मैंने एग्जांपल दिया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या हो। Now, going ahead with the discussion, solution architect कोर्स में हम लोग IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। तो हम लोग का मेन मॉडल रहेगा IT इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। बट कभी कभी हम लोग के वहां पर आ जाता है एक सर्विस जिसके लिए हमें डेटाबेस लगता है, और आजकल कस्टमर बोलता है मुझे सर्वर डालू, उसके बाद मैं उसके ऊपर एप्लीकेशन डालू या डेटाबेस डालू। मुझे सर्वर पे डेटाबेस रेडीमेड डाल दीजिए, मुझे माइक्रोसॉफ्ट SQL चाहिए।
मुझे Oracle चाहिए, मुझे Postgres चाहिए, तो Amazon वाला आजकल प्रोवाइड कर रहा है डेटाबेस एज अ सर्विस। ये भी एक एग्जांपल है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का। क्यों? क्योंकि सर्वर चाहिए, साथ में आपको डेटाबेस चाहिए। सर्वर भी आपको नहीं लेना है, डेटाबेस भी खरीदना नहीं है, उसको मैनेज भी नहीं करना है, अपग्रेड भी वही करेगा, पैचिंग भी वही करेगा, सब कुछ करेगा। डेटाबेस सर्विस। अब ये किसके रिलेटेड है? आईटी इंफ्रा। तो ये हमारे सिलेबस के अंदर है, इसको बोलते हैं आरडीएस, रिलेशनल डेटाबेस एज अ सर्विस। एक्चुअली डेटाबेस में दो कैटेगरी होती है, एक रिलेशनल और एक नॉन रिलेशनल। आगे आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत क्या होता है रिलेशन। तो हम लोग एक सर्विस देखने वाले हैं जिसके हम लैब्स और प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, वो रहेगा रिलेशनल डेटाबेस एज अ service. Okay, so hopefully everybody is able to understand what I'm trying to say. So सबके सामने ये तीन मॉड्यूल्स क्लियर हो गए? Everybody is live? Yes. Yes, sir. Okay, so hopefully everybody can understand that what are these three modules available in cloud: infrastructure as a service, software as a service, platform as a service. I've given you two examples of platform as a service, chatbot है, database as a service. अब हम लोग चलते हैं और आगे, and we can see that in IT infrastructure as a service के पहले एक बहुत पुराना मॉडल है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा सेंटर एज अ सर्विस। आपने का नाम सुना रहेगा कंपनी नेटमैजिक। Nowadays it has been taken care or taken over by entity. Now entity is a large scale of company which is providing large scale of data center across the globe to the people. Now what is Netmagic model? They will have built high-end data centers across the globe. They have racks, and in the racks they told that you keep servers in rack and we will charge you for keeping the server. When you got server 2000, 10,000, 20,000, 40,000, and they will charge you for 10 server this much, for 20 server this much, for 30 server this much. So what actually people are doing across the globe, that people were using infrastructure as service, software as service, platform service. Nowadays these are new things, but people were using a very old model from years and years, which is known as data center as a service, and where people will keep the server in Netmagic or VSNL, or people in Dubai or Abu Dhabi or UK, they're connected. They might have some different companies and they are offering the same solution as a service. In India, in Mumbai, you can see Reliance DAKC, you can see VSNL, Prabhadevi. Everybody has a data center. You keep 1U, 2U, 4U, whatever servers you want to keep. 1U is nothing but a rack space, which is a terminology. Those people who have worked in data centers, they might be aware. So what I mean to say is that people were giving data center as a service. बट AWS आकर क्या बोलने लगा, भाई नेटमैजिक वाले डेटा सेंटर बनाते, रैक लेते, सर्वर आप अपने रखते हो। नेटमैजिक वो बोला तू पीछे चले जा। AWS आ गया, AWS को कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट का Azure आ गया। माइक्रोसॉफ्ट तो कॉपी करने में नंबर 1 है। माइक्रोसॉफ्ट इज अ कंपनी विच इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट को क्या है, VMware ने वर्चुअलाइजेशन में vSphere निकाला, वन ऑफ द लीडिंग प्रोडक्ट, आज भी लीडिंग है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या निकाला, हाइपर। ठीक है, 10, 5, 10, 15, 20, 25% तक का थोड़ा थोड़ा करके कैप्चर कर लिया। AWS आया, हाँ भाई ये दे रहा है, चलो जो भी बंदा कुछ नया लाता है माइक्रोसॉफ्ट उसको कॉपी मार देता है, ठीक है ना। सो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एज्योर बना। अब AWS ने जब 2006 में बनाया, वो क्या बोला, भाई डेटा सेंटर भी मेरा और इसके अंदर सर्वर्स भी मेरे। सर्वर तुम अपने क्यों लाओगे, सर्वर भी मैं दूंगा। पहले तुम डेटा सेंटर में सर्वर रखने का भाड़ा देते थे, अब मैं सर्वर पूरा दे रहा हूं, मुझे कितना देते हो बोलो। सो पीपल स्टार्टेड ऑफरिंग, ओके सर्वर भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा एज अ सर्विस। सो बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, अभी एज्यूम करो, आई कैन से आफ्टर 2014 थोड़ा बहुत बूम में आया, और 2016-17 के बाद मार्केट ने ऐसा क्लाउड को खाया कि टुडे पीपल हु आर वर्किंग ऑन विंडोज और लिनक्स प्लेटफॉर्म and though don't have knowledge about cloud computing, a person is a team leader, a project manager, a data center manager, और अगर उसको क्लाउड का नॉलेज ही नहीं है, तो आज के जमाने में, ये 5 साल पहले 6 साल पहले 2014 में कुछ डिफरेंट सिचुएशन था, एंड 2020 में सब कुछ क्लाउड पे जा चुका है। इसका मतलब nowadays customers are preferring मैं ऑन प्रीमाइसिस डेटा सेंटर ना बनाऊं, जो AWS ने डेटा सेंटर बनाया है ऑलरेडी,
मैं उसी के डेटा सेंटर्स के सर्वर यूज करूँ, तो मुझे टेंशन नहीं है, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं है, मुझे डाउन टाइम का टेंशन नहीं है। जितने एम्प्लॉय हायर करना है AWS हायर करेगा, AWS भी थर्ड पार्टी को फिर कॉन्ट्रैक्ट देता है, डेटा सेंटर बनाओ, एम्प्लॉय हायर करो। इनडायरेक्टली इंजीनियर्स का जॉब जो डायरेक्ट पेरोल पे रहता था वो विप्रो वाले ले रहे, विप्रो वाले AWS का सपोर्ट दे रहे हैं, TCS वाले AWS का सपोर्ट दे रहे हैं। जॉब जो इधर था वो इस तरफ आ गया। सो बाय द वे व्हाट आई मीन टू से इज दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल एज अ सर्विस, बट ये लाइव चालू नहीं हुआ, ये इन फेसेस हुआ। डेटा सेंटर सर्विस आया, बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस फुल फ्लेज आ गया। अब अमेजोन वाले इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस दे रहे, तो कैसे दे रहे? अमेजोन ने दुनिया को, ये ग्लोब है, ठीक है, इसको अमेजोन ने बोला अपने को हर जगह सर्विस देना है, तो अमेजोन ने ना इस ग्लोब को डिवाइड कर, ठीक है, और इसको बोला रीजन, इसको बोला रीजन 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 रीजन। फॉर एग्जांपल ये यूएसए रीजन है, ये यूके है, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, ये पेरिस है। आप बोलोगे मकसूद ने यूरोप के इतने सारे रीजन लिख लिया, खुदा खैर करे। Nowadays Europe corona is spreading like a fire, and hopefully only creator can save India. India is also one region, and India में रीजन है मुंबई, ठीक है ना। अब ये इतने सारे रीजन है यूरोप के, यूएसए के। अब सोचो कि इतना बड़ा कोरोना ने फायर कर दिया पूरे वर्ल्ड पर, कि एवरीबॉडी इज इनसाइड हाउस। ऐसे टाइम में भी पीपल आर एबल टू वर्क, व्हाई? बिकॉज सेंट्रलाइज सबके पास अपने अपने सर्वर अपनी अपनी कंट्री के रीजन्स के अंदर, और क्लाउड बूम में था। So many companies are working now in this environment, from a closed environment, from their locations, and when they are working from their own locations, वो लोग अपने घर पे बैठे रिमोटली डेटा सेंटर में कनेक्ट करते हैं। किसकी डेटा सेंटर में कनेक्ट करते हैं? AWS। इसका मतलब जब आप AWS के कंसोल पे जाते हो, this is the console of Amazon, I will show you aws.amazon.com, ठीक है। Once this window open of aws.amazon.com, you can easily see over here there is one option available here, sign into console. When I sign into the console over here, there are options to create one account, and that account which is available from Amazon, that account is known as a free tier account, and that account is available for 1 year. But to create an account with AWS, you require a valid credit card. इसके लिए व्हाट्सएप के अंदर बताया गया था कि सब लोग के पास एक वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, नहीं है तो किसी फ्रेंड वगैरह से ले लो। सी इन फ्री टायर यू गेट एक्सेस टू ऑल रीजन्स, रीजन्स मतलब डिफरेंट ज्योग्राफी, ठीक है ना। टोटल आप AWS के कंसोल में जब फ्री टायर अकाउंट से लॉग इन करोगे, देखो फ्री टायर अकाउंट ऐसा कोई स्पेशल अकाउंट नहीं होता है। जो भी बंदा अमेजोन में जाएगा और पहला अकाउंट क्रिएट करेगा, वो अकाउंट उसका फ्री टायर मोड में ऑटोमेटिक जाता है। उसके अंदर देयर आर लिमिट्स, सर्वर यू कैन यूज दिस मच रैम, दिस मच CPU, स्टोरेज यू कैन यूज दिस मच CPU, बैंडविड्थ, डेटा ट्रांसफर इतना इतना, हर चीज की एक लिमिट है। स्टोरेज इतना यूज कर सकते हो, इंक्रिप्शन इतना ये यूज कर सकते हो, सब कुछ वो लोग ने दिया है लिमिट्स। ओके, राउटिंग करना है ये इतने फ्री यूज कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन यूज, फायरवॉल, सिक्योरिटी, एवरीथिंग यू कैन यूज। लिमिट्स in this training of 30 hours or 35 hours, whatever hours it takes, depending, our main target is that public should be able to understand। हमारा ये रहेगा, ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है इसका एक स्पेशलिटी है कि ये खाली मैं बोलूंगा ऐसा नहीं रहेगा, आप लोग लाइव प्रैक्टिकल्स भी करोगे। कल फ्री टायर अकाउंट हम बनाएंगे मॉर्निंग में, और उसके बाद आप लोग लाइव हमारे साथ प्रैक्टिकल भी करोगे। और प्रैक्टिकल करने के बाद इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर किसी को कोई इश्यू होता है तो मैं एनीडेस्क के थ्रू आपको सपोर्ट दे दूंगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर आपके सेशन का रिकॉर्डिंग रहेगा, बाद में भी देख सकते हो। बाय द वे AWS के ने फ्री टायर अकाउंट बनाने का ऑप्शन दिया, ठीक है। सो आई विल रिकमेंड कि आज आपका क्लास खत्म हो जाएगा, तो जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं इस क्लास को, आप लोग ये वेबसाइट पे जाना, aws.amazon.com पे। इस पे जाने के बाद एक ऑप्शन आता है साइन इन टू द कंसोल, ठीक है। व्हेन यू गो टू द साइन इन टू द कंसोल, ये आपको पूछेगा रूट यूजर और क्रिएट अ न्यू अकाउंट, तो आप बोल सकते हो क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट। व्हेन यू से क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट, ये आपको नॉर्मल ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, AWS अकाउंट नेम, कंटिन्यू पूछेगा, आप इसके आगे कंटिन्यू कर देना। ओके, कंटिन्यू करने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स पूछेगा, एक फोन कॉल वेरिफिकेशन के लिए आएगा, बहुत कुछ होगा, और उसके बाद एक अकाउंट मिल जाएगा और अकाउंट में आप लॉग इन कर पाओगे। तो अगर जिस और क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स मांगेगा, CV नंबर वगैरह प्रॉपर्ली दे दो। कभी कभी कोटक का या ICICI बैंक का डेबिट कार्ड भी चल जाता है, बट
मैं रिकमेंड करूंगा कि कल लेक्चर में आने से पहले यू कैन गो अहेड विद ऑन दिस वेबसाइट aws.amazon.com, create an account, put a proper email address which is accessible to you, put your password, which don't forget. There are people who create account, put the password and next section पूछे पासवर्ड से रीसेट करना है तो क्या करूं, ईमेल आईडी भी मैंने कुछ गलत डाल दिया था वगैरह वगैरह। सो ऐसा मत करो प्लीज। एंड आप लोग एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इस साइट के ऊपर। इसका एक बेनिफिट है कि हमें ये फ्री टायर अकाउंट मिल जाएगा और जैसे हम लॉग इन करेंगे ना हमको 18 रीजन्स दुनिया के दिखे एंड दिस 18 रीजन्स विच आर विजिबल टू यू। ओके, when you log into Amazon website you will be able to see 18 regions। कल मैं आपको 18 रीजन बताऊंगा। तो ये 18 रीजन्स मत दिखते हैं, इसका मतलब ये है कि you are able to see different regions where Amazons are having data set। अभी इंडिया को लोग ने एक रीजन बनाया, ठीक है ना। सो इंडिया इज वन रीजन और ये इंडिया के रीजन में Amazon का डेटा सेट। नाउ Amazon के कितने डेटा सेट होते हैं? आई सेड 18 रीजन्स आर देयर। कल हम काउंट भी कर लेंगे लाइव में कितने रीजन है, ठीक है। 18 रीजन है ज्योग्राफिकल, ठीक है ना। यूएस में जाना एक रीजन है, यूके एक रीजन है, यूएस में इनफैक्ट 2 रीजन है क्योंकि यूएस काफी बड़ा है, और इंडिया में एक रीजन है मुंबई। ओके, सो अब ये रीजन है तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर आपकी कंपनी को एक सर्वर डालना है तो सबसे पहले इफ द कंपनी इज मुंबई बेस्ड दे विल थिंक ओके वेयर टू पुट द सर्वर इन मुंबई रीजन। इफ द कंपनी इज जापान बेस्ड दे विल पुट द सर्वर वेयर इन जापान रीजन, बट अ पर्सन इन मुंबई कैन आल्सो पुट अ सर्वर इन जापान। A person in Japan can put a server in US also. Why? For disaster recovery, या for example एक MNC है and that MNC is having a business across the globe. Across the globe means for example मुंबई में उनका एक कुछ ब्रांचेस है, उनके सर्वर है and they are having website portal in English language, but that company is Japan and you know in Japan Japanese language is given preference। so उनके सर्वर देखो जापानीज लैंग्वेज वालों को तो बॉम्बे वाले एक्सेस करेंगे बॉम्बे के सर्वर को, जापान वाले जापान को। तो जो लोकेशन पे जहां बिजनेस एक कंपनी का ही भी मतलब 18 रीजन आपको सबके सब मिलेंगे एक्सेस करने। हाँ, अगर लिमिट्स जो है 365 डेज 1 ईयर के लिए फ्री है, वो फ्री लिमिट्स को आप क्रॉस करोगे तो आपको डे 1 पे ही चार्ज आएगा। मतलब ऐसा नहीं 365 डेज में जो करना है कर लो। इसका मतलब ऐसा समझो होटल की ओपनिंग हुई है और बोला है भाई आज ऑर्डर करो खाना खाओ, खाना खा लिए टेस्ट करवा दिया। अब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो पानी की बोतल का भी पर्सन दरबार होटल है हमारे अत्तारी क्लासेस जहाँ पर खाना कहते हैं 60 रुपीज ले लेता है 20 रुपीज की बोतल। इसका मतलब ये है कि ये फ्री है फॉर 1 ईयर, इसमें कुछ लिमिट है, इतना इतना यूज करो। इफ यू रिमेन विद अस इन द क्लास मैं हर बार आपको बोलूंगा देखो ये लिमिट है ये लिमिट है ये लिमिट है, इसके ऊपर मत जाना इसके ऊपर मत जाना वरना बिल आए। इन केस यूजर्स है पब्लिक पढ़ रही है, दे आर लर्निंग, दे आर न्यू, कंसीडर करो कि आपके साथ अगर कभी बिल आ गया 1000-1200 रुपए का 500 रुपए का बिल आ गया तो एक ऑप्शन होता है माफीनामा। ओके, यू कैन राइट अ लेटर ऑफ सॉरी टू अमेज़न कि भाई मेरा गलती से चार्ज लग गया, मैंने सर्वर चालू कर दिया था, मैंने आईपीस ले लिया था एंड फॉरगॉट टू रिलीज। मैं आपको माफीनामा का भी एक प्रैक्टिकल बता दूंगा और अगर आपने वो डाल दिया ना सो दे विल रिवर्ट योर चार्जेस। सो अमेज़न इज वेरी, दे विल डायरेक्टली नॉट बिल टू योर क्रेडिट कार्ड, दे विल सेंड यू फर्स्ट इनवॉइस। वो आपको सबसे पहले इनवॉइस भेजेगा। अगर आपने इनवॉइस का पेमेंट नहीं किया या उसको माफीनामा लिख के माफ नहीं करवाया, सॉरी लेटर नहीं भेजा, देन दे विल सस्पेंड। ओके, सो बाय द वे यू शुड बी अवेयर दैट 18 रीजन है और आपको टेंशन नहीं लेना है। क्रेडिट कार्ड मैप करो या कभी आईसीआईसी बैंक का, कोटक का, जो फॉरेन बैंक है अच्छी बैंक है एमएनसी, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, इनके कार्ड चल जाते हैं। किसी के पास एसबीआई का कार्ड रहेगा नहीं चलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब पीएसयू गवर्नमेंट के बैंक है, डरती है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वगैरह अलाउड नहीं करता। सो आपका क्रेडिट कार्ड यूज करो, सबसे बेस्ट है। नहीं है तो डेबिट कार्ड यूज किसी फ्रेंड से ले लो कार्ड वगैरह और ये अकाउंट बना। ओके, 18 रीजन रहेगा। 18 रीजन में क्या होता है, आपको फॉर एग्जांपल मुंबई रीजन चाहिए। हम लोग हर लेक्चर में देखेंगे कोई ना कोई अलग अलग रीजन में जाएंगे, तो कम से कम बिकॉज ऑफ कोरोना पीपल आर नॉट एबल टू ट्रेवल, एटलीस्ट आपको ये तो लगेगा कि भाई ठीक है मैं आज कुछ वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ बैठे बैठे 18 क्लास के साथ। सो एक मुंबई एक रीजन है, ठीक है। अब मुंबई एक रीजन में जब आप जाओगे ना तो आपको 2 डेटा सेंटर्स दिखते थे 6 महीने पहले। डेटा सेंटर को अमेज़न वाले बोलते हैं अवेलेबिलिटी। क्या बोलते हैं? अवेलेबिलिटी। सबसे पहले हो गया रीजन, और रीजन के अंदर क्या दिखेगा? अवेलेबिलिटी जोन। डेटा सेंटर को अवेलेबिलिटी जोन बोलते हैं। अब इंडिया के अंदर इतना डिमांड बढ़ गया क्योंकि एशिया पैसिफिक बहुत सारी कंट्रीज है, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, बट अमेज़न ने कहां पर डेटा सेंटर बनाया? इंडिया। व्हाई? इंडिया इज अ कंट्री व्हिच इज रूलिंग अक्रॉस द ग्लोब, बट वन ऑफ द रीजन करप्शन वगैरह के पीछे हम लोग पीछे रह गए, वरना हकीकत में हम इंडिया, यूएस और चाइना पे भी रूल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चाइना जैसे फिर हम पॉलिटिक्स नहीं करते, ठीक है। यूएस जैसे हम पॉलिटिक्स नहीं करते शायद इंडियंस, मगर ड्यू टू सम रीजन हम लोग पीछे रह गए।
बट बाय द वे इंडिया के अंदर so many qualified people are available and so good colleges and engineering people are available, so many engineers are available, thousands of people, qualified people are available and a good investment options are available. So एशिया पैसिफिक में जब इनको आना था तो इनके पास सिंगापुर था, जापान था, बट वो सब उधर पहले से बिजनेस चल रहा था। बट गरीब कंट्रीज में जब आना था लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, तो अमेजोन ने किसको सिलेक्ट किया? इंडिया। और इंडिया में किसको सिलेक्ट किया? मुंबई में रीजन को, ठीक है ना। सो अमेजोन ने बॉम्बे में एक रीजन डाला और वो रीजन के अंदर अमेजोन ने 2 डेटा सेंटर, बट डिमांड बढ़ा तो अराउंड 6 मंथ बैक वो लोग ने और एक डेटा सेंटर बनाया और उसको तीसरा नाम दे दिया AZ1, AZ2, AZ3। तो ऐसा नाम देगा एशिया पैसिफिक साउथ 1A, 1B, 1C। यूरोप में जाओगे तो 1A, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट ईस्ट, वॉट एवर नाम देगा। इसका मतलब अभी बॉम्बे में अंदर एक रीजन है और 3 डेटा सेंटर। अब यूएस में एक रीजन है, यूएस ईस्ट, वर्जीनिया, ठीक है ना। और वो रीजन के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको 6 डेटा सेंटर, कितना अवेलेबिलिटी? 6 डेटा। इसका मतलब कहीं पर 3 दिख रहे, कहीं पर 6, मगर कोई भी रीजन में जाओगे ना मिनिमम 2 डेटा सेंटर। मिनिमम कितना डेटा सेंटर मिलेगा आपको? हर जगह पर 2 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि किसी रीजन में आपको 6 डेटा सेंटर्स मिल रहा है और किसी रीजन में आपको 2 डेटा सेंटर मिलेगा और किसी रीजन में आपको 3 डेटा सेंटर मिलेगा, लाइक यूके है, जापान है, इंडिया। इसका मतलब अमेजोन के अंदर सबसे पहले आप कंसोल पे लॉग इन करते हो, क्या सिलेक्ट करते हो? रीजन। रीजन के अंदर आपको क्या मिलेगा? अवेलेबिलिटी जोन। तो अमेजोन के पास अप्रोक्सीमेटली 18 रीजन तो कंफर्म है और अमेजोन के बाद अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस अवेलेबिलिटी जोन है। मतलब कहीं पर 2 था इंडिया में, अभी 3 हो गया, कहीं 4 होगा, वहां पर 6 हो गया, व्हाटएवर। गेटिंग द पॉइंट? अभी 18 ज्योग्राफिकल रीजन में भी एक गेम है। क्या गेम है मालूम है? देयर आर टोटल 21 रीजन। रीजन जो है ना ये 21 है, मगर हमको दिखते कितने मालूम है? 18। 2 रीजन किसके मालूम है? यूएस गवर्नमेंट क्लाउड। और एक रीजन किसका है मालूम है? चाइना। अब यूएस गवर्नमेंट क्लाउड ने 2 रीजन बनाए, पूरे यूएस गवर्नमेंट के सर्वर थे, बट यूएस ने बोल दिया भाई मेरे सर्वर दुनिया को दिखना, सर्वर तो छोड़ो, रीजन ही नहीं दिखना चाहिए। सर्वर तो ऐसे नॉर्मल हमारे भी नहीं दिखते किसी को, प्राइवेट क्लाउड है, वो पब्लिक क्लाउड है मगर उसके अंदर सिक्योरिटी रहता है, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। सो बाय द वे यूएस गवर्नमेंट क्लाउड के 2 रीजन है, बट अब आपको दिखते ही नहीं, मतलब यूजर देख भी नहीं सकता वो रीजन। सिमिलरली चाइना ने बोला अपना रीजन छुपा दे। ये 2 कंट्रीज जो दुनिया में सुपर पावर अपने आप को बोलती है, ये लोग ने अपने रीजन ही छुपा दिए, ठीक है ना। इनके रीजन में कोई जा नहीं सकता, उनकी कंट्री के लोग जा सकते हैं चाइना में, और यूएस गवर्नमेंट सिर्फ यूएस गवर्नमेंट के सर्वर पे है। सो बट एक्सेसिबल पब्लिक के लिए 18 रीजन। ओके, सो नाउ गोइंग अहेड विद द डिस्कशन अबाउट अमेजोन की कुछ सर्विस का डिस्कशन कर लेते हैं कि अमेजोन ने ना हर चीज दिया है द सर्विस। अब होपफुली एवरीबॉडी हैज गॉट अ कंप्लीट आइडिया। किसी को कुछ डाउट्स है? Sir, I have question. यस Yes, तो यूएस ने जो अपना यूएस रीजन को छुपाया उसमें पब्लिक सर्वर नहीं बना सकते, लेकिन यूएस का यूजर सर्वर बिल्ड कर सकते हैं, रीजन देख नहीं सकते ओनली क्या? फॉर यूएस गवर्नमेंट। चाइना वाले चाइना के यूजर, मतलब जो आपका क्वेश्चन है कि यूएस गवर्नमेंट क्लाउड को सिर्फ यूएस गवर्नमेंट एक्सेस कर सकता है प्राइवेट लॉगिन से, एंड Okay. अदर देन दैट नोबडी कैन एक्सेस। Okay. चाइना रहेगा तो चाइना में चाइना के यूजर एक्सेस कर सकते हैं, बट यूएस गवर्नमेंट क्लाउड है वो सिर्फ यूएस गवर्नमेंट। Okay. Thank you. और यूएस के जो दूसरे रीजन है, यूएस ईस्ट है, यूएस वेस्ट है, वर्जीनिया रीजन है, बहुत सारे यूएस में रीजन है, वो रीजन को दूसरे लोग यूज कर सकते Okay. Thank you. हैं। एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स अप टिल नाउ? Everybody is available? They can hear me clearly? Yes, sir. Okay. So सुनील यादव नाम से शायद बंदा इस्माइल शेख ना, राइट? Myself, Irfan Sheikh. हाँ, व्हाट अबाउट लाइसेंसिंग? सुनील यादव, इस्माइल शेख ने पूछा है। ओके, सो लाइसेंसिंग क्या ऐसा होता है ना कि जो भी अमेजोन आपको देता है, अब मैं लाइसेंसिंग के पार्ट पे आता हूँ, आपको समझाता हूँ एक बार कि अमेजोन की कुछ सर्विस के बारे में लेते हैं कि अमेजोन की एक सर्विस है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। अब ये क्या है हकीकत में? ये जो रीजन होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन रीजन, और रीजन के अंदर आपके पास ये जो रीजन है ना, ये रीजन के अंदर आपके पास डेटा सेंटर है, अवेलेबिलिटी जोन 1, अवेलेबिलिटी जोन 2, अवेलेबिलिटी जोन 3 है, ठीक है। ये डेटा सेंटर के अंदर आप फाइनली डालोगे क्या? सर्वर, ठीक है।
अब ये जो सर्वर होगा आपको जो मिलेगा, ये जो सर्वर है ये विंडोज लिनक्स प्री इंस्टॉल्ड रहेगा और इसका आपको अमेजोन एक इमेज देता है जिसको बोलते हैं अमेजोन मशीन इमेज। यानी जब आप कंसोल पे जाओगे अमेजोन की तो आपको एक अमेजोन का मशीन इमेज का लिस्ट आएगा, विंडोज 2K16, 2K19, 2K12, रेड हैट, लिनक्स, सूजे लिनक्स, एंड्रॉइड। अब ये अमेजोन मशीन इमेज आप सिलेक्ट करोगे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कितना रैम चाहिए, कितना सीपीयू चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए। नेक्स्ट 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 फिनिश करोगे 2 मिनट में आपका सर्वर लॉन्च है। अब ये सर्वर का ना तो आपको ओएस लेवल का लाइसेंसिंग का टेंशन लेना है, ना आपको रैम सीपीयू का लेना है, ना अप टाइम डाउन टाइम का लेना है, पूरा प्रोवाइडेड बाय अमेजोन। ठीक है। हाँ, डेटाबेस में ऐसा है कि डेटाबेस में आप अपना लाइसेंस डाल सकते हो, ब्रिंग योर ओन लाइसेंस मॉडल है, बट इसके अंदर अमेजोन मशीन इमेज रहेगा, एक रेडीमेड इमेज रहेगा, मतलब सर्वर बना रहेगा, बैकएंड में उसका एक कॉपी रहेगा, बैकअप रहेगा और वो फ्रेश इंस्टॉल्ड रहेगा विंडोज 2K16, 2K9, उससे आप अपना सर्वर बना सकते हैं। ये जो आप सर्वर बनाते हो ना, उसको अमेजोन वालों ने लॉजिकल प्रैक्टिकल नाम दिया है EC2। What do you understand by EC2? EC2 stands for Elastic Cloud Compute. इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट का मीनिंग ये होता है क्लाउड में कंप्यूट पावर चाहिए, मेमोरी सीपीयू चाहिए। अब अमेजोन ने केमिस्ट्री का याद दिला दिया, EC2 इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट के आगे 2 लगा दिया, C 2 बार है तो 2 बार में 2 लगा दिया। इसका मतलब है आपको इलास्टिक अमेजोन ने एक वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से चोरी कर लिया। हर आइटम के आगे, हर कंपोनेंट के आगे वो लोग ने एक नाम लगा दिया, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, इलास्टिक आईपी, हर चीज, इलास्टिक लोड बैलेंसर, हर चीज के आगे ना ये लोगों ने इलास्टिक लगा दिया। इसका मतलब ये है कि आज की दुनिया में इन दिस वर्ल्ड इफ समबडी लिसन्स द टर्म इलास्टिक, समझ जानेगा ये किसका है, अमेजोन का। तो इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, क्लाउड के अंदर आपको कंप्यूट पावर चाहिए, तो अमेजोन ने उसको नाम दे दिया EC2। अब अगर आपको EC2 लेना है, मतलब इंडायरेक्टली आपको क्या लेना है, सर्वर लेना है, तो आप क्या यूज करोगे, इमेज यूज करोगे, इमेज से क्या डिप्लॉय करोगे, सर्वर डिप्लॉय। ठीक है। सो इसका मतलब सबको समझ में आ गया, अमेजोन मशीन इमेज रेडीमेड रहेगा और यूजिंग दैट इमेज आप सर्वर्स डिप्लॉय करते हो। उस सर्वर्स पे अमेजोन वाले क्या बोलते हैं, नाम देते हैं इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। जैसे हम लोग पुराने जमाने में स्कूल लाइफ में बोलते थे H2O। H2O का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, मिलके क्या बन गया भाई, H2O। अमेजोन ने केमिस्ट्री की यादें ताजा करने के लिए EC2 डाला। Okay, so by the way, Amazon Machine Image is one component of Amazon Cloud and Amazon Machine Image से आप क्या बना सकते हो, Elastic Cloud का। ठीक है। अब Elastic Load Balancer for EC2, this is also one service. What I mean to say by this, take an example कि आपके पास एक रिक्वायरमेंट है कि आपको वेब सर्वर चाहिए, 4 वेब सर्वर चाहिए। अब रिक्वायरमेंट है कि यार लोड बैलेंसर होना चाहिए, बिकॉज वेबसाइट पे जब ट्रैफिक आएगी तो आदमी विंडोज का क्लस्टरिंग करता है, लोड बैलेंसर विंडोज का यूज करता है, NLB वगैरह, या फिर थर्ड पार्टी के लोड बैलेंसर की डिवाइस लोग लेते थे एंड मल्टीपल सर्वर्स का लोड बैलेंसिंग के लिए यूज करते थे। नाउ द मार्केट हैज चेंज ड्रास्टिकली और पब्लिक क्या कर रही है मालूम है, अमेजोन हर चीज में आ गया ना। तो जब बड़े लोग आते हैं ना, एयरटेल, वोडाफोन और अभी जियो, ये 3 बड़े हैं, खाली ये लोग सर्वाइव हो रहे हैं, छोटे मोटे टाटा डोकोमो सब लोग सब चिल्लर खत्म हो गए। अब सिमिलर फैशन में जब बड़े लोग आ गए तो जितने लोड बैलेंसर छोटे मोटे सॉफ्टवेयर बेचते थे थर्ड पार्टी के, वो सब खत्म हो गए। अमेजोन ने दे दिया इलास्टिक, मैंने बोला ना इलास्टिक हर वर्ड के आगे लगा दिया ताकि उनकी एक प्रोप्राइटरी टर्मिनोलॉजी है, लोड बैलेंस। अब इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या करता है मालूम है, वो भी दे दिया एज अ सर्विस। मतलब आपको कोई सर्वर डालना, उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालना और ट्रैफिक उस पे आएगा, वो लोड बैलेंस करेगा, वो सब मगजमारी किया। इलास्टिक लोड बैलेंसर एज अ सर्विस। एज अ सर्विस का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। 2 मिनट के अंदर आप इलास्टिक लोड बैलेंसर लॉन्च कर सकते हैं और इलास्टिक लोड बैलेंसर के अंदर क्या डाल देने का, सर्वर्स। अभी आपके 4 वेब सर्वर है और इसके अंदर एक वेबसाइट चल रही है HDFC बैंक। HDFC बैंक.com के पास नेट बैंकिंग के लिए 4 सर्वर है, समझो 32 GB रैम के 4 सर्वर। अब वो लोगों ने क्या डाल दिया, इलास्टिक लोड बैलेंसर के अंदर 4 सर्वर डाल दिया। पहले क्या होता था, HDFC बैंक.com पे कोई जाएगा, नॉर्मली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्रेडिशनल वर्ल्ड में तो HDFC बैंक.com नाम है, रिजॉल्व किस पे करता है, IP। अभी IP किसका रहेगा, सर्वर का, राइट। ये सर्वर पे रिजॉल्व होगा, कितने सर्वर का IP रहेगा, एक सर्वर पे रिजॉल्व होगा। अभी क्या होगा मतलब HDFC बैंक.com किसी सर्वर की IP पे रिजॉल्व नहीं मारेगा, HDFC बैंक.com जो भी डालेगा तो उसका किस पे ट्रैफिक फेंकेगा, ELB। मतलब
जो लोग वेबसाइट होस्टिंग वगैरह में थोड़ा बहुत काम किए या आईटी वाले, इधर तो सब क्वालिफाइड लोग ही हमारे पास अभी जो बैच में है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, सब लोग वेल क्वालिफाइड और आईटी का बेसिक्स तो जानते ही है, तो एडवांस भी जानते ही होंगे। जैसे HDFCbank.com का डीएनएस में एंटर किया हुआ है कि भाई ये आईपी पे जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे मोबाइल फोन में नाम होता है, आपने रखा नाम मकसूद AWS ट्रेनर, तो मकसूद इज अ नेम, बट जब आप डायल करते हो मकसूद AWS ट्रेनर तो फोन मेरे को लगता है नंबर को, तो फोन नाम को नहीं लगता, फोन नंबर को लगता है। तो मोबाइल फोन बुक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डीएनएस। तो HDFCbank.com में हम लोग ने आईपी किसका डाला है? सर्वर का डाला। अब ये होता है कि आईपी हम सर्वर का डालते हैं, मगर सर्वर के आईपी पे रिजॉल्व करेगा तो एक ही सर्वर पे रिजॉल्व करेगा। अब हम HDFCbank.com में जाके डीएनएस में आईपी डालते जब, तो इसको बोलते हैं होस्ट ए रिकॉर्ड। आईटी वालों को मालूम रहेगा, ए रिकॉर्ड मतलब नाम के सामने आईपी एड्रेस, फोन बुक की तरह नाम और उसका मोबाइल नंबर, इसको बोलते हैं होस्ट ए रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड होता है जिसको बोलते हैं एलायस, एक नाम का दूसरा नाम। तो आपको आगे ये आएगा, राउट 53 करके एक टॉपिक है, इसके अंदर इसके प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे। बाय द वे HDFCbank.com पे कोई जाएगा और होस्ट ए रिकॉर्ड नहीं बनाएगा, वो एलाइस बनाएगा। HDFCbank.com लोड बैलेंसर पे जाएगा, लोड बैलेंसर का कोई नाम रहेगा abc.loadbalancer.com, मतलब HDFCbank.com पे जो भी ट्रैफिक जाएगा वो अब किस पे जाएगा? abc.loadbalancer.com। लोड बैलेंसर के अंदर कितने सर्वर है? 4 सर्वर। लोड बैलेंसर 100 रिक्वेस्ट में से 25 इधर भेजेगा, 25 इधर भेजेगा, 25 तीसरे पे भेजेगा और 25 फोर्थ पे भेजेगा। अब क्या हो गया? सबके ऊपर ट्रैफिक चला गया 25%, 25%, 25%। तो अब ये हो गया कि लोड बैलेंसर का नाम से सर्वर पे ट्रैफिक है, मतलब HDFC बैंक किसी ने टाइप किया तो उसका ट्रैफिक आ जाएगा लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक गया, लोड बैलेंसर सर्वर्स पे डिवाइड करेगा। Amazon ने लोड बैलेंसर भी दे दिया एज अ सर्विस। इसका मतलब आप सोचो कि आज के जमाने में मार्केट में किसी को सर्वर चाहिए, अब लोड बैलेंसिंग करना है, वो भी एज अ सर्विस देगी। और हद तो ये है कि Amazon ने लोड बैलेंसर एज अ सर्विस दिया, बट और एक जबरदस्त सर्विस दिया, बोलते हैं ऑटो स्केलिंग इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब रबर आपने देखा रहेगा, व्हेन यू हैव चिल्ड्रन इन योर होम, यू हैव अ पेंट्स, and in that pants what happens is that people for children pants they have elastic, देखा रहेगा। बड़े लोग इलास्टिक कम पहनते हैं और बच्चे लोग इलास्टिक रहते हैं। क्यों? बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा मोटा होता है, बच्चे फास्ट ग्रो होते हैं बचपन में, तो इलास्टिक रहता है। इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अब Amazon ने क्या बोल दिया मालूम है? तुमको इलास्टिसिटी मिलेगा ऑटो स्केल करके। मतलब क्या हो गया? एक जबरदस्त सर्विस Amazon ने निकाला कि फॉर एग्जांपल आज मेरे पास 4 सर्वर हैं और एक मेरे पास लोड बैलेंसर, और ये 4 HDFCbank.com पे जो भी जाता है कॉन्फ़िगर करके रखा है कि लोड बैलेंसर पे जाएगा, राइट? अभी जमाना आ गया है कोरोना का, खुदा खैर करे क्या होगा देखते। अब सब लोग HDFCbank.com पे नेट बैंकिंग के यूजर, हर बैंक मैसेज भेज रही है कि सर, हर बैंक मैसेज भेज रही है कि प्लीज यूज नेट बैंकिंग, स्टे एट होम, स्टे एट सेफ। 12वीं क्लास वाले भी अपने स्टूडेंट्स को भेज रहे मैसेज। सो बाय द वे सब लोग जा रहे हैं नेट बैंकिंग की तरफ ज्यादा, जिसका अकाउंट नहीं था वो लोग भी नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो अब ये ट्रैफिक तो पूरा लोड बैलेंसर पे जा रहा है, मगर नॉर्मल यूजेज के हिसाब से रिक्वायरमेंट थे 4 सर्वर। अब HDFC बैंक देख रहा है तो चारों सर्वर का यूटिलाइजेशन 65% रहता है तो ठीक है। अगर ये 70-80 के ऊपर जाता है और चारों का 80 के ऊपर गया, सर्वर हैंग होने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लोग का नेट बैंकिंग खुलेगा ही नहीं, पब्लिक बोलेगा अरे यार बंद है, एक तो तरफ कोरोना है, पीपल कैन नॉट गो आउट एंड HDFC बैंक सर्वर इज डाउन, नाम खराब हो गया। Amazon ने बोला आप एक सर्विस यूज करो, यू कैन एक्टिवेट दिस सर्विस नोन एज ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग में आपने डिफाइन कर दिया अलार्म के 70% के ऊपर लोड हर सर्वर का गया तो 2 सर्वर्स और ऐड कर, 2 सर्वर ऐड हो जाएंगे और लोड बैलेंसर में खुद से चले जाएंगे। ये भी प्रैक्टिकल है हमारा, लोड बैलेंसर भी प्रैक्टिकल है, ऑटो स्केलिंग का भी प्रैक्टिकल है हमारा। कितने सर्वर हो गए? 6। Okay, so you can scale, this is scale in, scale out, right? हाँ, ऑटो स्केलिंग हो रहा है, ये स्केल आउट हो रहा है। Okay. और Amazon ने फिर बोला कि ठीक है, अब 6 सर्वर डाला, मगर कोरोना ने कंटिन्यू किया या लोड बढ़ते रहा, लोड बढ़ते रहा, मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग कमिंग कमिंग। अब क्या करेंगे? और लोड बढ़ गया तो Amazon ने बोला आप चाहिए तो और 2 सर्वर ऐड कर दो। कितना हो गए? 8 हो गए। आप मिनिमम डिफाइन कर सकते हो 2, मैक्सिमम डिफाइन कर दो 8, मैक्सिमम डिफाइन कर दो 40, मैक्सिमम डिफाइन कर दो 100। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ऑसिलेट होते रहेगा।
अब ऑटो स्केलिंग की वजह से 70% का आपने अलार्म लगाया स्केल आउट के लिए, बढ़ना चाहिए, बट अगर आपका कंसीडर करो थोड़े दिन बाद लोड ड्रास्टिकली कम हो जाता ड्रास्टिकली आपका लोड कम हो जाता है, तो आप अमेजोन को बोल सकते हो कि ओके मेरा लोड कम हो गया, और 40% के नीचे अगर 6 सर्वर, अभी 8 सर्वर्स का लोड अगर जाता है 40 के नीचे, तो सर्वर्स को क्या करना है, रिड्यूस कर, क्या करना है, रिड्यूस। अब रिड्यूस कैसे करेंगे, अमेजोन वाले 2 सर्वर को बंद कर देंगे। आपने बोला कि अगर 40% के नीचे गया, अभी 6 बची, अब 6 का नीचे लोड गया तो और 2 सर्वर को बंद करना, और 2 सर्वर को बंद करना। इसका मतलब आप स्केल आउट में डिफाइन कर सकते हो, इतना परसेंटेज यूटिलाइज हुआ 2 सर्वर बढ़ा देना, इतना परसेंटेज यूटिलाइज कम हुआ 2 सर्वर घटा देना। इसका मतलब यू आर गेटिंग 100% पे एज यू गो मॉडल। 100% which model you are getting, pay as you go model you are getting. So this is the power of cloud, where you are getting 100% pay as you go model. 1 minute, I will connect myself to this. Okay, so basically here you are getting 100% cloud model, and this cloud model which you are getting. Welcome to the meeting. Okay, so basically this is a cloud model, and here you are getting 100, when here you are getting 100% pay as you go model. पे एज यू गो मॉडल का मतलब ये हो गया कि एवरीबडी इज गेटिंग 100% पे एज यू गो मॉडल। 100% पे एज यू गो मॉडल का मतलब हो गया कि आपको 2 दिन के लिए अगर लोड बढ़ता है तो 2 दिन के लिए आप 8 सर्वर का पैसा पे करते हो, और उसके बाद अगर आपका लोड कम हो जाता है वापस आप 4 सर्वर का पैसा पे करते हो। मतलब ऐसा मॉडल तो फिजिकल में पॉसिबल भी नहीं है कि लोड बढ़ गया, फेस्टिवल सीजन आया था, दिसंबर एंड था, मंथ ईयर एंड था, अच्छा बिजनेस था, दिसंबर में नवंबर में 2 सर्वर बढ़ा दूं, और जब जरूरत ना हो तो 2 सर्वर जाके रैक से निकाल के वापस बेच दूं। ऐसा पॉसिबल नहीं, बट क्लाउड में पॉसिबल है। तो हम लोग हमारे सिलेबस में ऑटो स्केलिंग भी देखेंगे, इलास्टिसिटी में। हियर यू कैन सी द क्लियर कट डायग्राम वेयर इट गिव्स एन आइडिया कि अगर आपका सर्वर लोड है, दिस blue color you can see it is actual demand, and orange color you can see its capacity. डिमांड कम था, सर्वर कम थे, डिमांड बढ़ा, सर्वर 4 to 6 हो गया, फिर डिमांड बढ़ा, सर्वर बढ़ गया, अगर डिमांड कम हुआ सर्वर घट गया, अगर अचानक से आपका डिमांड कम हो गया सर्वर भी एकदम घट गया, अचानक डिमांड बढ़ा तो सर्वर अचानक से आपके बढ़ जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट ना? सो इसका मतलब ये स्केल इन स्केल आउट खुद से करेगा। दिस इज अ जबरदस्त फीचर, अ वेरी गुड फीचर ऑफ Amazon known as ऑटो स्केलिंग। ओके, एक बहुत बड़ा इश्यू है, और हाँ, सचिन करके एक बंदा है जो पूछ रहा है कि AWS का जो लोड बैलेंसर है वो ट्रेडिशनल लोड बैलेंसर का रिप्लेसमेंट है। मैं उसी पॉइंट पे आगे आ रहा हूँ कि ये जो भी हमारे काम होते थे ना ट्रेडिशनल वर्ल्ड में, हम उसी सब चीज को है ना ये रिप्लेसमेंट कर। सो बेसिकली पहले जमाने में सर्वर के लिए हम डेटा सेंटर में रैक स्पेस डाल के खुद सर्वर खरीदते थे, और जगह नहीं होती थी तो नेट मैजिक में डालते थे। आज के जमाने में हम सर्वर यूज करते हैं EC2। सिमिलरली पहले जमाने में लोड बैलेंसर यूज करते थे, आज लोड बैलेंसर की जगह हमारे सर्वर सब क्लाउड में चले गए, EC2 है, तो हम लोग मतलब ट्रेडिशनल लोड बैलेंसर को रिप्लेस करते हैं। सो बेसिकली क्लाउड मॉडल में ट्रेडिशनल चीजों को छोड़ना है। जैसे लोग पहले जमाने में लैम्प जलाते थे घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो छोड़ दिया और एज अ सर्विस आज सर्विस प्रोवाइडर को यूज कर रहे हैं। पहले जमाने में कुआं खोद के लोग पानी लेते थे, ट्रेडिशनल मेथड था, आज लोग लाइन पाइपलाइन से पी रहे हैं। अभी ट्रेडिशनल मेथड जैसे बॉम्बे में हम लोग मजबूरी में यूज कर रहे हैं कि गैस का बॉटल उठा उठा के ला रहे हैं, लाने वाला ला रहा है, ताकत दे रहा है। अभी क्लाउड मेथड है कि डायरेक्ट लाइन ले लो गैस में, अगर गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे एरिया में कुरला में है नहीं, अगर है तो यूज एज अ सर्विस। सो बेसिकली आपको सबको पता चल रहा है, एवरीबडी इज फाइन अप टिल हियर, सो आई कैन गो अहेड विद द डिस्कशन। चैट में कम से कम सब यस 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 करके डालो एक बार, सो मुझे भी पता चल जाए कि सुनील यादव, इस्माइल शेख ने, सचिन, फरहान, सो हाउ इज लाइव, ओके गुड, एंड चलता लैपटॉप अपना बंदा है, क्या नाम है चलते लैपटॉप का? Sir, okay. I have a question regarding about licensing. Okay. Licensing in what do you mean by licensing? I'm saying in the Azure, if we have on-premises license for Windows Server, if you build the server in Azure, then 50% license can reduce and 50% license need to pay to Azure.
So दैट is दैट there इज पॉसिबल। अगर कोई ऑन प्रीमाइसेस से जा रहा है ना, तो ऑन प्रीमाइसेस से जा रहा है तो एडब्ल्यूएस में फीचर है कि ऑन प्रीमाइसेस के अगर आप सर्वर्स को माइग्रेट कर रहे हो, डायरेक्ट न्यू सर्वर अगर क्लाउड में बना रहे हो तो अलग है। अगर आप अमेजोन का एक फीचर है जिसको बोलते हैं एसएमएस सर्विस, सर्वर माइग्रेशन सर्विस, उसके थ्रू आप भी लाइसेंस पे बचा सकते हो। मतलब जब आप अमेजोन में ज्यादा सर्वर्स वगैरह बनाते हो ना, और अगर आप ऑन प्रीमाइस से कन्वर्जन कर रहे हो, तो अमेजोन आपको एक डेडिकेटेड चैनल पार्टनर असाइन कर देता है, हु इज हेल्पिंग यू, अ रिलेशनशिप मैनेजर सॉर्ट ऑफ थिंग। जैसे बैंक में अकाउंट खोलते तो आरएम होता है ना, वैसे ही जो आरएम रहेगा, इट विल हेल्प यू इन कस्टमाइजिंग एंड कॉस्ट। ये तो अमेजोन यहाँ तक के ना 60% 70% डिस्काउंट लोग को देते हैं when you go Okay. for an conversion from on-premises to cloud. So, Okay. hello But sir, US Ismail बोल रहा हूँ। just a minute, सुनील। यस, आप जो बोल रहे हो माइग्रेशन करने के टाइम में ऑन प्रीमाइसेस टू क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, ओके। Right. बट मेरा क्वेश्चन है, whenever we build the server, if I have the license of on premises, that license can use and the same in AWS infrastructure to reduce my licensing cost. हाँ, you can use it, but the problem is that Microsoft में benefit है कि Microsoft का Windows है and Azure भी Windows का, right? Yes. जब आप Amazon में EC2 लेते हो ना, तो आपके पास सिर्फ डेटाबेस एज अ सर्विस है। आगे हम डिस्कशन करेंगे किसमें ब्रिंग योर ओन लाइसेंस मॉडल है और किसमें ब्रिंग योर ओन लाइसेंस मॉडल पॉसिबल नहीं। इसका एक डिस्कशन आने वाला है, तो हम आपको डिटेल्स में बता देंगे कि आरडीएस, जैसे मैंने बोला, रिलेशन डेटाबेस एज अ सर्विस है, राइट, जिसमें ब्रिंग योर लाइसेंस मॉडल सपोर्टेड है। और नॉर्मल EC2 जो होते हैं जिसके अंदर सपोर्टेड नहीं है, और उसका रीजंस क्या है और कौन से केस में सपोर्टेड है, ठीक है ना। तो हम कॉस्ट के ऊपर एक टॉपिक लेने वाले हैं जिसमें हम आरआई वगैरह लेने वाले हैं। आप इंस्टेंस को रिजर्व वगैरह, मतलब कॉस्ट कटिंग के ऊपर हमारा एक टॉपिक है जिसके अंदर हम इसको डिटेल्स में ले लेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी समझ में आ जाएगा कि आप किस चीज के अंदर कॉस्ट कटिंग किस तरह कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक वो है कि एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का वो तो हर चीज के अंदर लाइसेंस एडजस्टमेंट करता है, बट अमेजोन ने खरीदा हुआ है लाइसेंस, और अमेजोन एक थर्ड पार्टी है, और अमेजोन फिर लिनक्स नहीं है, और गेटिंग द पॉइंट ना। तो अमेजोन ओपन एंड है, सो और आइडियाज आपको मिलेगा। एक हमारा टॉपिक आएगा जिसके अंदर कॉस्ट कटिंग की बात करेंगे, ठीक है। सो सबके मैक्सिमम लोग के तो रिप्लाई मिल गए। आई कैन सी सुनील यादव, मतलब इस्माइल शेख है, सचिन है, फरहान है, चलता लैपटॉप कौन है? किरण ना? ओके, किरण है। एंड प्लीज रीनेम योरसेल्फ सो आई कैन रिमेंबर इजीली। साहू ने भी रिप्लाई दिया, नरेंद्र, अभिजीत, इरफान शेख, ओके। सो सबका ऑलमोस्ट रिप्लाई आ गया, ओके। सो बाय द वे सबको ही समझ में आ रहा है नाउ। गुड दैट वी आर गोइंग अहेड विद डिस्कशन अबाउट सिक्योरिटी। जब सिक्योरिटी की बात आती है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि यार क्लाउड में सिक्योरिटी का क्या। There are many companies who are not going to cloud only because of the reason of security, and because why security is very important. कोई बंदे को नरीमन पॉइंट पे घर दिला के दो, मगर अगर सिक्योर्ड नहीं हो तो वो रहेगा क्या? मतलब दरवाजा ही नहीं उस घर में, परमिशन ही नहीं है, सो नोबडी विल स्टे इन दैट होम, राइट। सो बेसिकली एक लॉजिकल बात ये है कि जिस बंदे को जहां पर भी जाना है उसको सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सिक्योरिटी के लिए अमेजोन ने क्या किया? अमेजोन का क्लाउड है ना, इतना सिक्योर है जितनी हमारी डेटा सेंटर सिक्योर नहीं होते उससे भी ज्यादा सिक्योर। देखो, फर्स्ट थिंग यू शुड बी अवेयर, सिक्योरिटी में दो चीजें, वन इज क्लाउड प्रोवाइडर, वन इज क्लाउड कस्टमर। अगर दोनों जन बराबर एक दूसरे को देखकर पिएंगे तो बैलेंस में पिएंगे, वरना एक ज्यादा पी लेगा, कम पी लेगा, ये इस पे ब्लेम करेगा, इस पे ब्लेम करेगा, राइट। So the basic logic and the idea over here is in security is that Amazon has having many things for security। जैसे Amazon बोलता है कि यार कंसिडर करो, एक बेसिक एग्जांपल लो कि Amazon ने डेटा सेंटर बनाया जिस, और वो डेटा सेंटर एक रीजन है, और वो रीजन के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर। Amazon ने क्या बोला ये डेटा सेंटर्स को? अवेलेबिलिटी को, ठीक है। अब अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपने क्या डाला? सर्वर। इसको क्या बोला? EC2। आपने 3 डेटा सेंटर में अलग अलग सर्वर डाला और तीनों के अक्रॉस में एक लोड बैलेंसर डाला, ठीक है। अब आपके लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक आ रही है, डिवाइड हो रही है सर्वर्स पे। अब बताओ, ये डेटा सेंटर की फिजिकल बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना, फायरवॉल डालना, सर्वर डालना, ये सब तो अमेजोन ने कर लिया, मगर आपका जो वेब सर्वर है इसमें HTTP यूज करना है कि HTTPS यूज करना है, ये तो जिम्मेदारी आपकी है। अब आपने SSL सर्टिफिकेट इज अवेलेबल फॉर से एग्ज्यूम करो 3 to 5,000 per year. You don't install an SSL certificate, you don't take care of security. Now what will happen in this case? In this case your website is, if it is hacked, for example HTTP, the protocol 80 तो allow करोगे ही ना,
RDP अलाउ नहीं करोगे। Amazon बोलता है कि तुम्हारा वेब सर्वर तुम खाली प्रोटोकॉल 80 अलाउ, मतलब तुम पोर्ट रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो, प्रोटोकॉल रिस्ट्रिक्शन भी कर सकते हो। और आप चाहते हो कि पोर्ट 80 अलाउड है, कहां से? सीधी बात है, वेब सर्वर है तो इंटरनेट से अलाउ करना पड़ेगा फ्रॉम ऑल ओवर इंटरनेट। बट कंसीडर करो कि आपको कोई ऐसा सर्वर है जो इंटरनेट से एक्सेस नहीं होना चाहिए, खाली इंटरनेट से लोकल पब्लिक एक्सेस करना चाहिए, जैसे TCS का, माई विप्रो के पोर्टल होते हैं ऑनलाइन पे, तो आप उसमें इंटरनेट की जगह अपना सबनेट डाल सकते हो, कस्टम सबनेट, तो आपका सर्वर बाहर से एक्सेस नहीं होगा, खाली अंदर से एक्सेस होगा। मतलब पोर्ट, प्रोटोकॉल और कहां से एक्सेस होगा, यहां तक की सिक्योरिटी इतना है कि अगर आपने डाल दिया एक आईपी तो खाली आपकी आईपी से एक्सेस होगा, पूरी दुनिया में कोई उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। इन शॉर्ट, अगर आपने HTTPS यूज नहीं किया तो गलती किसकी है? कस्टमर की गलती है। तो Amazon बोलता है कि मेरे सर्वर तक कोई पहुंच नहीं सकता है। Amazon के पास दो टाइप की फायरवॉल है, हर सर्वर पे एक फायरवॉल होती है EC2 पे, हर सर्वर पे एक Amazon की फायरवॉल है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, और हर डेटा सेंटर के नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फायरवॉल है। आगे डिस्कशन आएगा एक दो लेक्चर में हमारे, नेक्स्ट वीक के ये पूरे वीक में डिस्कशन आएगा, जिसको बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये आपके डेटा सेंटर को, सबनेट को प्रोटेक्ट करता है। ये फायरवॉल है जो पूरी डेटा सेंटर के नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेगा। और अगर कोई इसके अंदर घुस गया, मतलब आर्मी को तोड़ के घुस गया, तो लास्ट में सर्वर पे आएगा, सर्वर पे भी एक फायरवॉल है जिसका नाम है सिक्योरिटी। समझ में आ रहा है? मतलब Amazon का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक है, उसको अंदर कोई घुस नहीं सकता। मगर अगर बंदे ने सर्वर पे HTTP अलाउ नहीं किया, अलाउ बोला ऑल पोर्ट्स 1 to 65,000 ऑल पोर्ट्स, कौन आ सकता है, कौन से प्रोटोकॉल? ऑल प्रोटोकॉल अलाउ। और कहां से आ सकता है? एनीवेयर आ सकता है। अब बोल दिया कोई भी पोर्ट 80 लेना है, RDP लेना है, SSH लेना है, जो लेना है, लो HTTPS, सब कुछ अलाउड कर दिया। और क्या बोला, कहीं से भी आ सकता है। आप पता उसका सर्वर हैक हो गया, कुछ हो गया, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? कस्टमर है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल आपका सर्वर है, इसके ऊपर एक स्टोरेज कनेक्टेड है, स्टोरेज के अंदर Amazon ने ऑप्शन दिया इंक्रिप्शन का। अगर आप चाहिए तो आपकी स्टोरेज को इंक्रिप्ट कर सकते हो। अगर आपका डेटा है कोई सर्वर तक पहुंच गया, इन केस कंपनी का कोई इंटरनल बंदा, ये जो ये सर्वर तक AWS क्लाउड में जिसको एक्सेस आपकी कंपनी का बंदा है पहुंच गया, मगर स्टोरेज का डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, क्यों? इंक्रिप्टेड है। अगर बताओ रेफल की फाइल थी, लीकेज हो गई थी बीच में, एक न्यूज़पेपर है, द हिंदू न्यूज़पेपर, उसने पब्लिश कर दिया, उसने पब्लिश कर दिया तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में चली गई, बोली कि भाई इसको बोलो कि इसने ना सिक्योरिटी डोमेन का डेटा पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दिया। शायद बहुत सारे लोग को मालूम रहेगा, हिंदी न्यूज़पेपर ने पूरा रेफेल का डील पब्लिश कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा, ये बताओ ये लोगों ने पब्लिश किया, इनका काम ही है न्यूज छापना, तुम ये बताओ कि तुम्हारा डेटा लीक किसने किया? तुम डिफेंस मिनिस्ट्री में, तुम्हारा डेटा लीक किसने किया? तो लॉजिकल क्वेश्चन ये आता है कि अगर स्टोरेज को बंदे ने इंक्रिप्ट कर दिया, तो अगर कोई बंदा सर्वर तक पहुंच गया मगर उसका डेटा स्टोरेज में इंक्रिप्टेड है, तो वो स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंक्रिप्शन के लिए लगता है की, जैसे हम पासवर्ड लगता है ना नॉर्मल लॉगिन करने के लिए, ऐसे इंक्रिप्शन मतलब आपके डेटा को जीरोस एंड वन से साइफरिंग करके छुपा दिया जाता है, अब उसके लिए लगता है इंक्रिप्शन की। सो बाय द वे, आप Amazon में जब जाते हो तो टेंशन फ्री रहो कि Amazon के अंदर Amazon सबसे पहले एक बाउंड्री बनाता है, और वो बाउंड्री के अंदर आपको डेटा सेंटर्स का एक्सेस देता है। कल वो बाउंड्री की बात करेंगे जिसका नाम है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, हर रीजन में। फॉर एग्जांपल आप Amazon क्लाउड में गए, Amazon क्लाउड में आपने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद आपने बॉम्बे रीजन सिलेक्ट किया, तो आपको Amazon एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना के देता है, आपके लिए स्पेशल क्लाउड का एक डोमेन बनता है, और उस क्लाउड में आपको डेटा सेंटर्स मिलती है, अवेलेबिलिटी जोन, और उसके अंदर आप सर्वर्स बनाते हैं। मतलब इसके अंदर दुनिया का कोई बंदा आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हाँ सही बात है, ये फिजिकल नहीं है, वर्चुअली है, मगर है प्राइवेट। किसके लिए? क्लाउड, सिर्फ आपके लिए। तो ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनता है, उसके अंदर डेटा सेंटर होती है, उसके अंदर सर्वर होते हैं, तो कोई भी आपके क्लाउड को एक्सेस किसी भी हालत में नहीं कर सकता। ये एक बात आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि अगर VPC के अंदर डेटा सेंटर है और वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, उसके अंदर डेटा सेंटर, उसके अंदर सर्वर, को एक्सेस ही कर सकता है। एक्सेस वो कर सकता है जो रूट अकाउंट, जिसने AWS का अकाउंट बनाया वो एक्सेस कर सकता है सर्वर्स को, या जिसने रूट अकाउंट ने यूजर बनाया, एडमिन 1, एडमिन 2, कंपनी में डेलीगेशन होता है ना, एक ही बंदा पूरी कंपनी को तो नहीं संभाल सकता है, तो जो यूजर्स इस पे एक्सेस दिया है वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं, या जैसे HTTP आपने सर्वर है, उसको इंटरनेट से HTTP एक्सेस दिया, तो कोई वेब सर्वर है, HDFC बैंकिंग, नेट बैंकिंग है, वेबसाइट है, तो बाहर वाला एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब एज्यूम करो कि Amazon के अंदर सिक्योरिटी इतनी हाई है जितनी हाई हमारी शायद डेटा सेंटर बनाओ। क्यों मालूम है? हमारी डेटा सेंटर एग्जाम करो, ABC एक कंपनी है, उसकी डेटा सेंटर, वो लोग ने 10 करोड़ सिक्योरिटी पे खर्चा किया, मगर सिर्फ किसके सर्वर है? उनके सर्वर।
प्रॉब्लम हुआ तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो एक ही कंपनी है। बट अगर आप देखोगे अमेजोन के अंदर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉर्पोरेट कस्टमर है होस्टेड। आज के जमाने में ऐसा कौन सा कॉर्पोरेट है? आप देख लो, टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, एक्सेंचर है, एटोस है, सीजी है, कैपजेमिनी, सो मेनी कंपनीज आर देयर। You will not find a single corporate जो AWS का पार्टनर नहीं, AWS का कस्टमर नहीं, सॉल्यूशन नहीं दे रहा। So thousands of corporate customers है जो AWS के चैनल पार्टनर है, thousands of customer के lakhs of servers deployed है। कहाँ पर? AWS में। अगर आपके बैंक में से एक अकाउंट में से पैसा हैक हो गया तो दूसरा बंदा आपके बैंक में अकाउंट नहीं खोलता है तो कैसे अपने सर्वर्स डाल देगा वो बैंक में? इसका मतलब लॉजिकल बात है कि जब भी हम क्लाउड में रहते हैं तो सिक्योरिटी इतनी हाई होती है जब हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, एचडीएफसी का नेट बैंकिंग 100% सिक्योर है, 128 बिट एसएस है, फिर भी लोग अकाउंट से पैसा निकाल लेते। कैसे निकाल लेते भाई? पासवर्ड खुद ही दे देता है, फोन आता है, तुम्हारा डेबिट कार्ड ब्लॉक होने वाला है, तुम्हारा सीवीवी नंबर दो, तुम्हारा एक्सपायरी डेट दो, सब दे देता है, बंदा बोलता है हैक हो गया। तो याद रखना, व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज दैट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लाउड प्रोवाइडर और दूसरी तरफ क्लाउड कस्टमर्स। दोनों जन अगर लाइव अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्लाउड प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है फिजिकल बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना, प्रॉपर फायरवॉल सिक्योरिटी का देना, और क्लाउड कस्टमर का काम है कि जो कुछ क्लाउड कस्टमर ने डिफाइन किया है सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल उसको फॉलो करना। अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। आपको बोला है सिक्योर रखो, खाली एचटीटीपी एक्सेस दो, सिर्फ एसएसएच एक्सेस देना है किसी को, सिर्फ आरडीपी एक्सेस देना है तो आरडीपी। अगर आप चाहते हो कि किसी सर्वर का पिंग ना मिले तो पिंग ब्लॉक कर दो, सर्वर को पिंग नहीं मिलेगा, सिर्फ आरडीपी मिलेगा। तो हम ये सब आगे देखने वाले हैं। मतलब क्लाउड में बहुत हाईली सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है। आप एसएसएल यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, यू कैन यूज स्टोरेज इंक्रिप्शन। थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, यू कैन क्रिएट यूजर्स, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। यूजर्स बनाओ, उसको रोल्स दो और परमिशन दो। एक यूजर है L1 वाला, रीड ओनली, उसको पूरा एक्सेस मत दो, सिर्फ रीड ओनली दो। एक यूजर है जिसको एडमिन एक्सेस देना है तो उसको सिर्फ एडमिन एक्सेस दो, वो एडमिन लेवल का काम कर पाएगा। दूसरी बात है पैचिंग। जिस तरह हम लोग फिजिकल सर्वर में पैचिंग कर देते हैं डेटा से, तो देयर आर फ्यू पीपल हु फॉरगेट दैट क्लाउड में चला गया तो सिक्योर है। माय डियर फ्रेंड, इफ योर सर्वर इज अवेलेबल इन क्लाउड and yeah, that server is available in cloud and you don't do regular patching, तो एक वायरस आया था, शायद आपको सब लोग नाम सुना था, जिसका नाम है रैनसम वायरस। ठीक है, तो रैनसम वापस आएगा। अब एचटीटीपी सर्वर है, एचटीटीपीएस पे एक्सेस हो रहा है, कोई उसने साथ में रिक्वेस्ट के साथ कोई वायरस भेज दिया और आपका सर्वर के ऊपर वो पैच ही नहीं था विंडोज का। आपने देखा रहेगा कि क्लाउड में किसी सर्वर में रैनसम वायरस के अटैक्स नहीं हुए, प्राइवेट में जो डेटा सेंटर में लोग थे उनके वहां अटैक हो गए। क्यों? पैचिंग नहीं था रेगुलर। कोई भी एमएनसी के सर्वर हैक नहीं हुए, बड़ी बड़ी कंपनीज के। भाई एमएनसी के अंदर आपने देखा रहेगा आईटी वाले हर सैटरडे संडे क्या काम होता है? एक ही काम, पैचिंग। समझ में आ रहा? सो अगर प्रॉपर पैचिंग हुआ, ये कस्टमर के रोल है, कस्टमर साइड के रोल है। अमेजोन ने अपनी तरफ से फुल्ली सिक्योर रखा है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो अमेजोन में बहुत सारी स्टोरेज के ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लोकल स्टोरेज चाहिए, सस्ते में चाहिए, तो अमेजोन बोलता है ठीक है हम तुमको लोकल स्टोरेज का ऑप्शन। अगर किसी बंदे को हाई एंड स्टोरेज चाहिए जिसका प्रॉपर बैकअप्स वगैरह हो एंड इजीली अवेलेबल हो, तो अमेजोन वाले एक सर्विस देते हैं जिसका नाम है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। उस सर्विस का नाम है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज मतलब आपके पास एक सर्वर है, इसको बोलते हैं EC2। इसके ऊपर आपको 2 TB का ड्राइव चाहिए, किसी को EC2 के ऊपर 4 TB का ड्राइव चाहिए, किसी को EC2 के ऊपर 16 TB का ड्राइव चाहिए, आप दे सकते हो, नो इश्यूज। ये ड्राइव जो रहेगा इसको बोलते हैं ब्लॉक स्टोरेज। क्यों? सर्वर पे आपको ड्राइव दिखेगा, आप इस ड्राइव को फॉर्मेट करोगे। क्या करोगे? फॉर्मेट करोगे। अब जिस ड्राइव को हम फॉर्मेट करते हैं उस स्टोरेज को बोलते हैं ब्लॉक स्टोरेज। क्या बोलते हैं? ब्लॉक स्टोरेज। इसके लिए अमेजोन ने इसके अंदर दे दिया है कि दिस स्टोरेज इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज अवेलेबल एज अ सर्विस। आप 2 TB लोगे तो पैसा 2 TB का, आपने 4 TB लिया तो पैसा 4 TB का, आपने 16 TB लिया 16 TB। अगर आपको सर्वर के ऊपर एक लोकल स्टोरेज चाहिए जिसको बोलते हैं इंस्टेंट स्टोरेज, आगे इसका भी डिस्कशन आएगा, तो लोकल स्टोरेज भी मिल जाता है मगर उसका कुछ लिमिट है। वो बहुत फास्ट स्टोरेज होता है मगर उसके अंदर लिमिट है कुछ, उसका डिस्कशन आगे आएगा। तो एक तो लोकल स्टोरेज आप डाल सकते हो, एक तो सैन से आप कनेक्टिविटी ले सकते हो। 2 TB 4 TB 16 TB का स्टोरेज आपको डायरेक्ट सैन से मिल सकता है, उसका बैकअप्स वगैरह आप तब शेड्यूल कर सकते हो, स्नैपशॉट्स ले सकते हो। अगर आपको फाइल्स रखनी है तो अमेजोन ने स्टोरेज निकाला S3। S3 का फुल फॉर्म है सिंपल स्टोरेज सर्विस। बट कितनी बार ऐसे? 3 बार। तो अमेजोन ने नाम दे दिया S3। आपको सबको याद है ना, केमिस्ट्री। ओके, सो बाय द वे सिंपल स्टोरेज सर्विस के अंदर अमेजोन ने केमिस्ट्री दे दिया S3, सिंपल स्टोरेज सर्विस।
नाउ व्हेन वी गो अहेड विद सिंपल स्टोरेज सर्विस, इसके अंदर क्या मालूम है, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। गूगल ड्राइव आपने देखा रहेगा और ड्रॉपबॉक्स वगैरह देखा रहेगा, कोई भी फाइल, वीडियो है, ऑडियो है, MP3 है, एनी टाइप ऑफ फाइल, डॉक्यूमेंट है, XLS है, PPT है, any type of file, MP4 है, MP3 है, any type of file you can put over here. This type of storage is known as S3, which is known as object storage. ठीक है। अब Amazon के पास स्टोरेज के लिए लोकल स्टोरेज है, ब्लॉक स्टोरेज मतलब सर्वर पे आप जितने टीबी का ड्राइव चाहिए ले लो, ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। अब ऑब्जेक्ट स्टोरेज S3 है ना, ये बहुत हाईली रिडंडेंट रहता है, मतलब इसकी बहुत जगह पर कॉपीज होती है, बैकअप्स होता है। यानी गूगल ड्राइव में आप एक फाइल रखा और बॉम्बे की डेटा सेंटर में आग लग गया, तो गूगल वाला ये नहीं बोलेगा भाई आग लग गया मैं क्या करूं, डेटा सेंटर गया, सब कुछ गया, ऐसा नहीं। Amazon वाला सिमिलर फैशन में गूगल ड्राइव की तरह ऑब्जेक्ट स्टोरेज देता है, इसका बहुत जगह पर बैकअप है। मगर किसी को ये महंगा लगता है, छोटे कस्टमर होते हैं, गरीब कस्टमर, उनको सब महंगा लगता है। ऐसे केस में क्या करेंगे, तो Amazon ने बोला है रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज। रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज का मतलब है कि अगर एक बंदे को ये महंगा लग रहा है S3, तो Amazon ने S3 के अंदर एक ऑप्शन दिया है, सब ऑप्शन है RRS। रिडंडेंसी कम कर देंगे, बैकअप्स कम जगह लेंगे, रेप्लिका कम जगह लेंगे, मगर Amazon बोलता है क्रिटिकल डेटा मत डालो। मगर इसका अगर कॉस्ट 100 रुपया लग रहा है, एज्यूम करो एक महीने का आपका कुछ फाइल्स का, तो इसका आपका कॉस्ट लगेगा 50 रुपए, रिडंडेंसी कम हो जाएगी, आपको देगा। मतलब Amazon बोलता है गरीब से गरीब है, छोड़ना नहीं है भाई, आ जा, वरना कौन ले लेगा, एज़्योर ले लेगा, गूगल क्लाउड ले लेगा। ओके, दूसरी बात, Amazon ने S3 के अंदर एक तो RRS दिया, दूसरा एक ग्लेशियर भी दिया। ग्लेशियर में ना RRS में रिडंडेंसी कम होती है, ग्लेशियर में रिडंडेंसी सेम रहती है, मगर ग्लेशियर कहीं फार लोकेशन पे सेव होता है। तो ग्लेशियर में किस डेटा को डालते हैं, आर्काइवल डेटा। अभी आज कौन सा दिन है, 1 अप्रैल, और आपको मालूम है कि कल 31 मार्च बैंकिंग ईयर क्लोज हो गया। अब सब बैंक्स लोग क्या करेंगे, फॉर्म 16 वगैरह सब कंपनी जनरेट करेगी, बैंक के सब ट्रांजेक्शन देखेंगे 1 अप्रैल 2019 से कल तक के 31 मार्च 2020 तक। ठीक है, पूरे ट्रांजेक्शंस वगैरह देखने के बाद Amazon वाले क्या करे, कंपनी वाले क्या करेंगे कि पूरा डेटा लेंगे, उसके टैक्स फाइलिंग वगैरह मई जून तक यूज करेंगे डेटाबेस, और जून के बाद जब टैक्स फाइलिंग हो गई उसका पूरा डेटाबेस को लेंगे, कट करेंगे और S3 में डालेंगे। पर S3 की एक सब कैटेगरी है जिसका नाम है ग्लेशियर। जब ग्लेशियर में डाल देंगे तो बेनिफिट क्या होगा मालूम है, ये आर्काइवल में चला जाएगा। जब चाहिए तो आपको रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइमिंग। मगर आपका कॉस्ट अगर S3 में 100 रुपीज था तो ग्लेशियर में 10 रुपया। अगर कहीं दूर दराज लोकेशन पे डाल देगा जहां पर बैंडविड्थ कम है तो रिट्रीवल को टाइम लगेगा, मगर रिडंडेंसी सेम रहेगा, आपका डेटा एकदम सेफ है, अलग अलग जगह पर कॉपीज है, बैकअप्स हो रहे हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि आर्काइव डेटा को रखने के लिए कंपनी को कम पैसा लगता है। सो Amazon के पास आर्काइवल के भी सॉल्यूशंस अवेलेबल है। सो स्टोरेज में जाते हो तो Amazon लाजवाब। अब बात करते हैं मॉनिटरिंग की। Amazon के पास एक सर्विस है which is a service which is very famous, and why famous, because फ्री है। फ्री में जियो ने दिया सबको, फ्री बन गया, फेमस हो गया। उस सर्विस का नाम है क्लाउड वॉच। ये क्या करता है मालूम है, मॉनिटरिंग करता है। आपको व्यू देखना है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, नेटवर्क यूटिलाइजेशन, डिस्क IO, नेटवर्क ट्रैफिक, अलार्म, कस्टम मैट्रिक्स। मतलब फॉर एग्जांपल एक सर्वर है एंड एज्यूम करो कि वो जो सर्वर है EC2 है, इसका CPU यूटिलाइजेशन कब बढ़ा, ये हैंग हो गया, एज्यूम करो आपने ऑटो स्केलिंग वगैरह इनेबल नहीं करा, इसका मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना गया, ये बहुत स्लो चल रहा है, तो इसका डिस्क इनपुट आउटपुट कितना है, आईओएस कितना चल रहा है, ये सब कुछ आप देख सकते हो फ्री ऑफ चार्ज। इसको बोलते हैं क्लाउड वॉच। पर ये सर्विस भी बहुत अजीब और गरीब है। ये क्लाउड वॉच है तो फ्री, मोस्ट ऑफ द सर्विस को मॉनिटर करता है, बट ये मॉनिटरिंग सर्विस है। बट एक जमाना ऐसा आता है कि जो है क्लाउड वॉच सर्विस एंड हर जगह आप जाते हो तो उसके नीचे एक ऑप्शन आता है टिक डिटेल मॉनिटरिंग। आपको दिखाऊंगा डिटेल मॉनिटरिंग, देखो भाई पैसा देके जाओ कुछ चिल्ला बताएगा, एक्स्ट्रा चार्जेस आता है, एकदम डिटेल मॉनिटरिंग चाहिए तो जैसे हमारे पास स्पेशलाइज्ड कस्टम टूल्स होती है जो हमें डिटेल मॉनिटरिंग करके देती है, तो डिटेल मॉनिटरिंग के लिए क्लाउड वॉच हम यूज कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट। सो क्लाउड वॉच इज अ फ्री जनरल बेसिक मॉनिटरिंग देता है। अगर इन जनरल इन डिटेल मॉनिटरिंग चाहिए तो आप क्लाउड वॉच यूज कर सकते हो एज अ सर्विस, बट दैट सर्विस इज अ पेड सर्विस। नाउ गोइंग अहेड विद द डिस्कशन, डेमो लेक्चर का ये पीपीटी है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं थोड़ा को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सो दैट एक बंदे को एक आइडिया आ जाए कि भाई क्लाउड में मेरे साथ होने वाला क्या है, क्या मैं कोर्स ज्वाइन करूँ, कंटिन्यू करूँ, क्या मेरे को समझ में आ रहा है। सो ट्रेनर भी यही है, ट्रेनिंग का अंदाज भी सेम है, और ये जो चीजें कवर होने वाली है वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो कुछ मैं डेटा सेंटर में फिजिकल वर्ल्ड में करता था आज मैं क्लाउड में वही कर रहा हूँ, बट एक नया अंदाज है विच इज कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नाउ डेज, बिकॉज हर कोई क्लाउड पे। क्लाउड के कंस्ट्रेंट्स,
इसका मतलब ये है कि पहले जमाने में ऐसा होता था मॉडल, रोल ऑफ एन आईटी एडमिन। ये आप देख पा रहे हो कि यर रोल ऑफ एन आईटी एडमिन, डेटा सेंटर है, ये पूरा गुच्छा दिख रहा है केबल का ये सर्वर दिख रहे हैं, सब कनेक्ट है, ये रैक है, स्विच है, मतलब ये पूरा एक गढ़ यू कैन अंडरस्टैंड। जो लोग डेटा सेंटर में काम कर चुके हैं उनको मालूम है ये होता। अभी क्या हो गया मालूम है, ये हट गया है। ये जो डेटा सेंटर है वो हमारे पास नहीं है, अभी अमेजोन के पास, बैकएंड में अमेजोन के पास ये डेटा सेंटर, और हमारे हाथ में क्या है, लैपटॉप है, माउस है और एडब्ल्यूएस का कंसेप्ट। अब ये देख रहे हो ऑटोकैड का डिजाइन मैंने बताया इसके ऊपर। एक बंदा जैसे बिल्डिंग का डिजाइन करता है आर्किटेक्ट, उसको मालूम है कि रेती क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, लोखंड क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, कहाँ क्या यूज होना चाहिए, उसको ये ब्लॉक्स मालूम। अब जिसको ये ब्लॉक्स नहीं मालूम है ना, ये सोचता है क्लाउड में कंस्ट्रेंट्स क्या है, क्लाउड में कंस्ट्रेंट। और जिसको ये ब्लॉक्स मालूम है कि कहाँ कौन सा ब्लॉक लगा, ये ब्लॉक के ऊपर ये, इसके ऊपर ये लगाऊंगा तो बिल्डिंग बनेगी, इधर मुझे डक्ट छोड़ना है फायर के लिए, इधर मुझे छोड़ना है। इसका मतलब ये है कि आजकल एडब्ल्यूएस एडमिन का रोल है, पीसी पर बैठेगा, जो फिजिकल वर्ल्ड में जाके डेटा सेंटर में रैक में केबल लगाता था, पावर लगाता था, नेटवर्क लगाता था, स्टोरेज लगाता था, बैकअप सॉफ्टवेयर डालता था, कॉन्फ़िगर, सब कुछ रेडीमेड है, मगर आपको उसको यूज करने आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया। इन शॉर्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कंसीडर करो एक कस्टमर के आप गए गए पास और वो बोलता है कि भाई मेरे को ना सर्वर्स डालना है, आजकल क्लाउड बहुत डिमांड में चल रहा है, सस्ता भी है, तो मुझे सर्वर्स क्लाउड में डाल। आपने बोला ठीक है सर्वर क्लाउड में डाल देते हैं। तो वो पूछेगा कि भाई क्या करोगे, तो तुम बोलोगे सर अमेजोन के पास एक सर्विस है जिसका नाम है EC2। तो बोलेगा ठीक है EC2 क्या है, बोले सर इसको सर्वर बोलते हैं, इसके अंदर आपका OS और आपको जो एप्लीकेशन डालना है आप बाद में डाल सकते हैं। बोले ठीक है, फिर क्या करना है, अरे बोले सर आईपी दे दूंगा, पब्लिक आईपी दे दूंगा, आप एक्सेस कर लेना घर बैठे। अब कस्टमर ने आपको पूछा कि भाई मेरे पास एक सर्वर नहीं, मेरे पास मल्टीपल सर्वर है, 4 सर्वर है, और मैं चाहता हूं कि मेरे सर्वर का ट्रैफिक का लोड डिवाइड हो जाए। अगर आपको अमेजोन की सर्विस मालूम है तो आप बोलोगे सर एक सर्विस है ना इलास्टिक लोड बैलेंसर, और ये डाल दूंगा मैं तो आपका लोड डिवाइड हो जाएगा। बोला अच्छा ऐसा हो सकता है, बोले हाँ सर हो जाएगा। बोले ठीक है, फिर बैकअप्स का आपको मालूम होना चाहिए, फीचर है अमेजोन के पास स्नैपशॉट्स जो बैकअप्स लेता है। तो आपने बोल दिया सर आपका बैकअप कॉन्फ़िगर कर दूंगा, स्नैपशॉट रोज हो जाएगा, डेली 24 घंटे में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा कि भाई सिक्योरिटी का क्या, बोले सर आपका वेब सर्वर है ना, तो खाली HTTPS में अलाउ करूंगा और कोई दुनिया में बंदा इंटरनेट से कोई प्रोटोकॉल नहीं एक्सेस कर सकता। बोले भाई मगर मेरा जो एडमिन है ना, मेरी कंपनी का जो एडमिन है वो इसका RDP लेना चाहिए, वरना कैसे काम करेगा वो। तो बोले सर आप टेंशन मत लो, आपके एडमिन के मशीन का IP और RDP प्रोटोकॉल पोर्ट 3389 में अलाउ कर दूंगा, तो आपका एडमिन RDP ले पाएगा मगर बाहर वाला सिर्फ HTTPS ले पाएगा। अब आपने उसको बता दिया तो वो खुश हो गया, बोला भाई ऐसा भी हो सकता है। उसने बोला भाई मेरा जो पूरा सर्वर है, ये पूरी जो डेटा सेंटर है, ये डेटा सेंटर को पूरा प्रोटेक्शन है कि नहीं। बोले सर हमारे पास एक फायरवॉल है, वो पूरे आपके डेटा सेंटर को प्रोटेक्ट करता है, जिसको आपने इन किया वही फायरवॉल से अंदर आएगा, उसके बाद सर्वर पे भी एक सिक्योरिटी लेगा, कस्टमर खुश हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कस्टमर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, कस्टमर का काम है ये दिमाग में क्वेश्चन आया पूछेगा, फिर ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपने कस्टमर पूछता गया और आप उसको आंसर दे रहे हो सर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मतलब कस्टमर इन कर रहा है आप आउट कर रहे हो। ऐसे केस में अगर कस्टमर पूछते जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि कस्टमर ने आपको पूछा कि भाई, कस्टमर ने आपको पूछा कि भाई तुम्हारे पास क्लाउड में तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास क्या है। तुमने बोला सर हमारे पास एक सर्विस है जिसका नाम है EC2, तो उससे सर्वर चाहिए। ओके, कस्टमर ने बोला सर्वर चाहिए तो आपने EC2 दिया। उससे बोला लोड बैलेंसर, उससे बोला लोड बैलेंसिंग की उससे बात की तो आपने उसको इलास्टिक लोड बैलेंसर दे दिया। उससे सिक्योरिटी का क्वेश्चन पूछा तो आपने उसको नेकल बता दिया, सिक्योरिटी ग्रुप बता दिया, फायरवॉल बता दिया। उसने आपको पूछा कि भाई मॉनिटरिंग के लिए क्या है, तो आपने उसको क्लाउड वॉच का सॉल्यूशन दे दिया। इसका मतलब कस्टमर आपको क्वेश्चन पूछते जा रहा है और आप कस्टमर को सवाल का जवाब देते जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, कस्टमर इज गेटिंग सेटिस्फेक्शन, हाँ यार ये बंदा है ना मेरे लिए सही है, क्यों, वॉट एवर आई एम आस्किंग ही इज एबल टू आंसर। इसका मतलब ये मेरे ना सवालों के जवाब, ये मेरे को सॉल्यूशन डिजाइन करने में हेल्प करे। अब अगर एक बंदा होता, एज्यूम करो, जिसको ये सब मालूम ही नहीं,
ये सब मॉड्यूल्स मालूम नहीं, ये EC2 का ब्लॉक है, ये EBS का ब्लॉक है, ये लोड बैलेंसर का ब्लॉक है, ये बैकअप का ब्लॉक है, ये सिक्योरिटी का ब्लॉक है। अगर इसको मालूम नहीं अरेंज कैसे करना है तो ये बोलता है क्लाउड में कंस्ट्रेंट्स है। जिसको अरेंज करने आता है उसको लोग बोलते हैं क्लाउड आर्किटेक्ट। तो हमें ये बनना है क्लाउड आर्किटेक्ट। कस्टमर पूछे हम सॉल्यूशन। एक एग्जांपल लो कि एक बंदा है और वो बोलता है कि भाई मेरे को ना सॉल्यूशन डिजाइन करना और मुझे एक सर्वर चाहिए क्लाउड के अंदर। तो एक बंदा है जिसको ना ये जो ब्लॉक्स मैंने दिखाया ना इसका पूरा नॉलेज नहीं है, वो AWS क्लाउड आर्किटेक्ट नहीं है, उसको क्वेश्चन का आंसर का जवाब देने आता है। और अगर है भी आर्किटेक्ट तो उसको मालूम है EC2 क्या है, 2-3 सर्विस मालूम है, आगे का कुछ मालूम है। अब क्या करेगा ऐसे केस? देखो एक लाइव एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल। ये देखो एक बंदा है, कस्टमर है, जिसने एक बंदे को क्लाउड आर्किटेक्ट को बुलाया और वो क्लाउड आर्किटेक्ट इतना कुछ पावरफुल नहीं है। उसको बोला कि भाई देख मेरे को एक सर्वर चाहिए। उसने बोला सर एक सर्वर ले लो और इंटरनेट से एक्सेस कर लेना। अब बताओ, उसको सर्वर का सॉल्यूशन दे दिया, इंटरनेट एक्सेस कर लेना, कस्टमर ने ले लिया, मगर ये सर्वर डाउन हो गया। सर्वर डाउन हो गया, इंटरनेट चल रहा है, कस्टमर को सर्वर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। कस्टमर नारा देके खुश है, कस्टमर इज नॉट हैप्पी। व्हाट इज द रीजन ऑफ नॉट बीइंग हैप्पी? द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को जब सॉल्यूशन देने के लिए बुलाया तो उसने बोल दिया सर्वर हाँ डाल के दूंगा इसी। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका ये क्वेश्चन होता है कि सर हाँ मैंने तो EC2 डाला ना क्लाउड में। तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, फिर क्लास क्यों ज्वाइन कर रहा है? बोले नहीं सर नॉलेज चेस के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं कैंडिडेट्स मार्केट में जिनको ये मालूम है EC2 कैसे बनाते हैं क्योंकि नेक्स्ट फिनिश करना है, बट आगे पीछे कुछ मालूम नहीं है, तो सॉल्यूशन कैसे डिजाइन करें। अब नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। एक बंदा है जो थोड़ा पावरफुल है, उसने कस्टमर को सॉल्यूशन दिया कि सर एक काम करना, अगर आपको सॉल्यूशन डिजाइन करना है तो आई एम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, मैं आपको बोलूंगा कि आप जो बोल रहे थे कि मैं एक सर्वर लूंगा, इससे अच्छा आप 3 सर्वर लो। एक सर्वर अगर आप 12 GB रैम का ले रहे हो, इससे अच्छा 4-4 GB रैम के 3 सर्वर। ठीक है, बीच में एक लोड बैलेंसर डालो। ये क्या करेगा? ये जो लोड बैलेंसर रहेगा, ट्रैफिक बाहर से इंटरनेट से आएगा, लोड बैलेंसर पे जाएगा। लोड बैलेंसर क्या करेगा ना, ट्रैफिक सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो लोड बैलेंसर तो आपने अमेज़न से लिया एज अ सर्विस, ये तो बैठने वाला नहीं है, डाउन नहीं होगा। अब अगर आपके कोई सर्वर बैठ गए, डाउन हो गए, तो आपका लोड बैलेंसर तो एज अ सर्विस है, तो बैकग्राउंड में उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़न की, और अमेज़न ने लोड बैलेंसर में भी बैकएंड में डिजास्टर रिकवरी प्लान करके दिया क्योंकि एज अ सर्विस दिया। अब आपके 3 सर्वर में से अगर कोई एक सर्वर बैठ गया, एज्यूम करो कि आपका एक सर्वर बैठ गया, तो अमेज़न को बोलेगा कि अगर आपका एक सर्वर बैठ गया सर तो आपको टेंशन नहीं लेना है, 4 GB रैम वाला एक सर्वर बैठ गया, 2 सर्वर 8 GB रैम चल रहे हैं, अगर 25-50 रिक्वेस्ट आ रहा है तो 2 सर्वर भी हैंडल कर लेंगे। मतलब एक सर्वर बैठने से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ नहीं जाएगा, और बोलेगा कि सर सर्वर के साथ डेटाबेस रखना अच्छी बात नहीं है, डेटाबेस अलग से। ठीक है, अब ये बंदे ने अच्छा सॉल्यूशन दे दिया, डेटाबेस अलग हो, इसका बैकअप वगैरह लेते हैं, मगर अगर डेटाबेस डाउन हो गया, एक ही डेटाबेस है, और इन केस अगर डेटाबेस सर्वर बैठ गया, तो वेब सर्वर 3 है मगर फायदा कुछ भी नहीं है क्योंकि डेटाबेस ही बैठ गया। एक दूसरा बंदा आर्किटेक्ट, वो और अच्छा सॉल्यूशन देगा, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंस अबाउट अमेज़न नॉलेज सर्विसेज। वो बंदा बोलेगा सर तुमको जिससे भी सॉल्यूशन दिया ना वो सही बंदा नहीं है, उसको आधा नॉलेज है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। मैं आपको बोलूंगा लोड बैलेंसर लो, आपको बोलूंगा मल्टीपल वेब सर्वर बनाओ, और आप अमेज़न, आप अपना डेटाबेस मत डालो, आप अमेज़न का रिलेशनल डेटाबेस एज अ सर्विस यूज करो। कस्टमर बोलेगा ये क्या है? बोले सर ये ऐसी सर्विस है जिसके अंदर आप डेटाबेस बनाओगे तो आपको पूछेगा कि आपको फेलओवर के लिए दूसरा डेटाबेस सर्वर बनाना है, और वो सर्वर, दैट सर्वर ही विल नॉट क्रिएट इन द सेम डेटा सेंटर, ही विल क्रिएट इन अनदर डेटा सेंटर, और उसको बोल देगा स्टैंड बाय। मतलब अगर एक नरीमन पॉइंट में डेटा सेंटर बॉम्बे में और एक वाशी में, न्यू बॉम्बे में, तो एक सर्वर नरीमन पॉइंट में रहेगा, दूसरा वाशी में रहेगा, और दोनों सर्वर आपस में कंटिन्यूस सिंक होएगा, जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस रेप्लिकेशन। सिंक्रोनस रेप्लिकेशन होगा। अगर इनके एक डेटाबेस बैठ जाता है तो आपके वेब सर्वर स्विच नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद अमेज़न स्विच कर देगा दूसरे डेटाबेस सर्वर, इसको लाइव बना देगा, स्टैंड बाय को प्राइमरी बना देगा, मास्टर बना देगा। तो कस्टमर बोला हाँ यार ये सॉल्यूशन तो तेरा परफेक्ट है। इसका मतलब किसी को अगर सर्वर का EC2 का नॉलेज है, लोड बैलेंसर का भी नॉलेज होना चाहिए, डेटाबेस का भी नॉलेज होना चाहिए, सिक्योरिटी का भी नॉलेज होना चाहिए, बैकअप्स का भी नॉलेज होना चाहिए, ये जो सब नॉलेज आपको लगता है, इसी नॉलेज के लिए जो कोर्स डिजाइन हुआ है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट।
ठीक है ना। सो ये जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कोर्स है, ये जो कोर्स है, दिस कोर्स इज नथिंग बट कवरिंग, ये इतना करता है, अमेजॉन सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल का कोर्स है, ठीक है। ये जो कोर्स है ना, ये बंदे को इतना रेडी कर देता है कि पूरा कस्टमर को न्यू इम्प्लीमेंटेशन करना है तो वो बंदा इजीली न्यू इम्प्लीमेंटेशन में उसको उतनी सर्विस का नॉलेज हो सकता है कि वो कस्टमर को हेल्प कर सकता है, या अगर फ्रीलांसर है तो कंसोल लेकर उसका अकाउंट बनाकर उसको पूरा न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करके सेटअप करके दे सकता है। या एक ऐसा बंदा है जो जाता है कोई कंपनी में, और आज के जमाने में तो सब कुछ क्लाउड पर है ना, तो लोगों के पास AWS ऑलरेडी सेटअप है, उसका लिनक्स या विंडोज का प्रोफाइल है, टीम लीड है, टेक लीड है, प्रोजेक्ट मैनेजर, और वो बंदे को बोलता है कि ठीक है भाई, पूरा सेटअप है क्लाउड में, तुम चेक करो कहाँ का लूप होल। अब जैसे एक बंदे ने अभी, सचिन ने या किसी ने तो सवाल किया था लाइसेंसिंग के ऊपर, सो व्हाट आई सेड टू हिम, दैट गाय दैट विल टेक दिस टॉपिक लेटर ऑन, राइट। what I mean to say that take this topic later on, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये लाइसेंसिंग एक टॉपिक है, कॉस्ट सेविंग का एक टॉपिक है, उसके अंदर एक बंदा अभी रिसेंटली आया था, ही वाज फ्रॉम अ कंपनी नेट मैजिक, क्लासरूम ट्रेनिंग के अंदर, और वो बंदे को हम लोग ने एक RI का टॉपिक आया जिसमें अराउंड 60% कॉस्ट सेव हो जाता है, तो उसने मेरे पास लैपटॉप कनेक्ट किया और उसके ऑफिस पे कनेक्ट किया यूजिंग VPN इंटरनेट डोंगल से। अब वो आया, बोलता सर देखो मेरे को सर्वर का बिल आता है कुछ $2800, तो अगर आप 60% सेविंग बोल रहे हो तो हमारा तो $1500-1700 कम हो जाएगा। मैं बोला हाँ हो जाएगा। तो बोला सर हमको तो ये मालूम ही नहीं है। बोला कौन मैनेज करता है? बोले सर नेट मैजिक ने क्लाउड आर्किटेक्ट को हायर किया, स्पेशल बंदा है। अब बंदा तो है बट नॉलेज ही नहीं है, और सैलरी उसको दे रहे समझो 10 लाख का पैकेज, इससे अच्छा एक बंदे को 15 लाख का पैकेज दो, 20 लाख का पैकेज दो, बट ऐसा बंदा लो जिसको सॉल्यूशन डिजाइन करना मालूम है, तो उसको ट्रबल शूट मालूम है, उसको लूप सोल्व मालूम है कहाँ किया। तो वो बंदे ने मेरे सामने पिंग किया और बोला कि सर मैं इस बंदे को भी देखता हूँ। अब ये मैनेजर है, दिस गाय हु इज अ मैनेजर इज लीडिंग, बट उसको ये समझा कि $2800 है और ये क्यों डिस्काउंट वाला रूट अप्रोच नहीं किया। तो याद रखना, क्लाउड आर्किटेक्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइज भी करे, कंपनी के एग्जिस्टिंग इंफ्रा को भी फाइन ट्यून करके दे, उनका कॉस्ट सेविंग करे, और न्यू इंप्लीमेंटेशन करना है, कहीं प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर सके, इसके लिए नॉलेज चाहिए। और ये नॉलेज हम लोग इस सर्विस, ये कोर्स के अंदर AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कोर्स में देते हैं, ठीक है। सो बाय द वे हमारा 7:30 के आसपास का टाइम था, बट आज हमने 7:40 तक स्टार्ट किया। रीजन वाज दैट कुछ लोग नए थे, गो टू मीटिंग वगैरह में लॉग इन कर रहे थे, और सब लोग लॉग इन हो गए। एंड एट द लास्ट I will ask you one thing, that किसी को कोई क्वेश्चंस है, ये सेशन आज के लिए एंड हो रहा है। कल सब लोग को एक काम करके आना है, वो ये है कि AWS की वेबसाइट पे जाके अपना फ्री टायर अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैं भी कल क्रिएट कर लूंगा, मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, मैं वापस और एक अकाउंट क्रिएट करूंगा, बट आप लोग क्रिएट कर लेना। किसी को कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो हम देख लेंगे, बट फ्री नॉर्मल एक जैसे गूगल में याहू में अकाउंट क्रिएट करना है, क्रिएट कर देना है, लॉग इन करके देखना सब हो रहा है, तो हम लोग फिर कल मिलेंगे सेम टाइम 7:30। बट फर्स्ट लेक्चर था तो हम 10 मिनट लेट करते हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर से क्योंकि हमको टाइम पे अगर लेक्चर स्टार्ट करना है, टाइम पे कंप्लीट करना है, सो आई विल रिक्वायर दैट एवरीबडी इज अवेलेबल ऑन टाइम, और 7:30 को स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम टाइम पर वी विल ट्राई टू क्रिएट क्लोज द लेक्चर बाय 9:30 एवरी डे। सो बाय द वे आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी कि अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास अभी तक माइंड में डेमो के रिलेटेड, तो आप डाल दो मुझे चैट के ऊपर, या क्वेश्चन आप पूछ सकते हो स्पीकर पे, एंड इफ नॉट देन विल क्लोज द लेक्चर। और अगर किसी को इन केस लेक्चर अच्छा नहीं लगा, सॉरी फॉर दैट, ट्रेनर अच्छा नहीं लगा, सॉरी फॉर दैट, और अगर आपको अगर ज्वाइन नहीं करना है बैच, तो आप सपोर्ट टीम से थोड़ी देर बाद व्हाट्सअप कर लेना, अराउंड 10 o'clock ही विल बी लाइव मिस्टर शाहबुद्दीन, और उसको अपने अकाउंट डिटेल शेयर कर देना, वो आपको फीस रिफंड कर देना। और जिसको भी कंटिन्यू करना है, ये बैच डेली होगा 7:30 to 9:30, और अप्रोक्सीमेटली ये 15 डेज में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये मंडे टू सैटरडे रहेगा, और मंडे टू सैटरडे डेली, मंडे टू सैटरडे रहेगा, डेली बेस पे मंडे टू सैटरडे 15 डेज रहेगा, 7:30 to 9:30, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 15 डेज में खत्म हो जाएगा, और हर लेक्चर की हम रिकॉर्डिंग्स जो करेंगे ना, उसकी लिंक हम आपको शेयर कर दिया करेंगे, आप डाउनलोड कर लो, और वो लिंक बाद में एक्सपायर हो जाएगी, तो आप डाउनलोड कर लेना, एंड यू कैन कीप विथ यू इन अ सिक्योर फैशन, इन केस अगर आपको कभी रिवाइज वगैरह करना है तो हेल्पफुल रहेगा। एंड होपफुली के anybody has any questions before disconnecting the call, don't get Yes. disconnected or log off until everybody Okay. says anybody has any question related to today, then let me know. Yes sir, मेरा क्वेश्चन है। हेलो 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 सर, you are able to hear me? Normal, 1 minute, I'm on call on a auto break
कवरेज कॉल, ये 5299 किसका नंबर है जो मुझे फोन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या नाम है उनका? नरेंद्र, ओके। हाँ देखो, क्लाउड के लिए AWS या Azure के लिए कोई स्पेशल बैंडविड्थ नहीं रिक्वायर होता है। इनका क्वेश्चन ये है, दोस पीपल हु आर नॉट एबल और नॉट कनेक्टेड टू पेज, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। ये बंदे का क्वेश्चन है कि क्लाउड पे काम करने के लिए बैंडविड्थ कितना रिक्वायर्ड होता है। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूं कि ये जो क्लाउड है, इसके अंदर नॉर्मली इंटरनेट पे वेबसाइट खुलती है, जिसमें मैंने बोला aws.amazon.com से मैंने खोला ना, तो ये वेबसाइट अगर आपकी खुल गई तो बस आपका काम हो गया। नॉर्मल आपको बैंडविड्थ चाहिए, सिर्फ आपका Amazon का वेबसाइट खुल गया, आपने लॉगिन कर लिया, और उसके बाद आपको कुछ बैंडविड्थ वगैरह आपके एंड पे जरूरी नहीं है। जो भी बंदा काम करेगा, सर्वर का एक्सेस लेगा, तो RDP तो नॉर्मल 1 Mbps 2 Mbps का कनेक्शन रहेगा, नॉर्मल हॉटस्पॉट से भी कनेक्टेड है तो चलता है। मतलब सब सर्वर्स वगैरह क्लाउड में रखे हुए ना, तो आपको काम करने के लिए क्लाउड में कोई ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत ओके। और चैट पे जब तक लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अगर एक एक करके बंदा चैट पे डाल दे तो अच्छा रहेगा। वन बाय वन मैं आंसर कर दूंगा, और जो लोग को ट्रेनिंग का फीडबैक देना, आज का डेमो लेक्चर का कैसा था क्या था, वो भी आप शेयर कर सकते हो लाइव चैट के ऊपर। सो प्लीज शेयर योर फीडबैक फॉर टुडेज डेमो, और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो भी डाल दो। और नेटवर्क कनेक्टिविटी का साहू का क्वेश्चन है। साहू, कैन यू क्लैरिफाई नेटवर्क कनेक्टिविटी में आप क्या बोलना चाह रहे हो? एक्चुअली जैसे ऑन प्रीमाइसेस टू AWS का प्रीमाइसेस में नेटवर्क हाँ, कनेक्टिविटी तो के लिए जैसे ये Azure के अंदर एक्सप्रेस राउट होता है, Amazon के अंदर डायरेक्ट कनेक्ट होता है। मतलब आपकी कंपनी में अगर आपको अपने प्राइवेट डेटा सेंटर से क्लाउड में कनेक्टिविटी करना है तो आप कर सकते हो यूजिंग डायरेक्ट कनेक्ट। इसके ऊपर भी एक टॉपिक आने वाला है। ओके सर, ये हम लोग का जो बिफोर कंप्लीट दिस सेशन AWS सेशन, हम लोग कुछ माइग्रेशन करने वाले हैं ऑन प्रीमाइसेस टू AWS प्लेटफॉर्म। प्रीमाइसेस टू Azure हम माइग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतनी बैंडविड्थ भी नहीं होती है। हम उसके सॉल्यूशंस आपको बता देंगे, और SMS सर्विस है, जो सर्वर माइग्रेशन का जो सर्विस है, वो एसोसिएट लेवल के कोर्स में नहीं है, वो प्रोफेशनल लेवल में आता है। बट जैसे कुछ कुछ बहुत सारी सर्विस है, स्नोबॉल वगैरह सर्विसेज है ऑन प्रीमाइसिस से ऑफ प्रीमाइसिस में, वो सब सर्विसेज हम आपको बता देंगे कैसे यूज कर सकते हो। लॉजिकल बात है कि हम इधर का कोई सर्वर उठा के क्लाउड पे नहीं डाल पाएंगे। जो नॉर्मली वर्चुअलाइजेशन में P2V करते हैं, वैसा ही P2V की तरह होगा। ओके, so which tool we can use from migration from on-premises to AWS? डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी की जब बात करेंगे ना, तो एक 1 गिग का या 10 गिग का चैनल आप ले सकते हो। आपकी प्रीमाइसिस से लेकर Amazon की प्रीमाइसिस तक एक चैनल रहेगा जो 1 गिग या 10 गिग का रहेगा। अब 10 गिग का कनेक्टिविटी रहेगा तो आप सर्वर का, जिसके अंदर 100 GB का हार्ड डिस्क है, उसका मूव कर सकते हो क्लाउड पे ना। अब हम 1-2 Mbps वाले कैसे मूव करेंगे? गेटिंग द पॉइंट ना? तो जिसके पास कनेक्टिविटी है क्लाउड से, वो कर पाएगा SMS सर्विस। और जिसके पास क्लाउड का कनेक्टिविटी नहीं है, वो स्नोबॉल वगैरह यूज कर सकता है। मैं सब सर्विसेज आपको बताऊंगा। ओके, सो आज के डेमो लेक्चर के रिलेटेड होपफुली बहुत सारे टेक्निकल लोग को क्वेश्चंस रहेंगे फ्यूचर लेक्चर्स के। तो लेक्चर्स आ जाएगा तो टॉपिक वाइज हम डिस्कशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरे लोग लेक्चर्स के बारे में फीडबैक या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डाल दो। हाँ सर, और एक क्वेश्चन है मेरा। ओके, हाँ, ये ऑथेंटिकेशन के लिए एडी ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ लेक्चर्स है। ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हो, एक्टिवेट ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हो। नहीं, हम लोग का लेक्चर में है टॉपिक में। हाँ है ना, एडी कनेक्टर है ना, एडी कनेक्टर। ओके, सो सेम लाइक Azure AD कनेक्टर एंड AWS आल्सो सेम थिंग, राइट? हम Azure की बात के लिए Azure का एक डिफरेंट ट्रेनर है, Azure का लेक्चर्स भी वही लेता है। ओके, बट मैं AWS के लिए स्पेसिफिक हूँ। जैसे VMware पे मैं ट्रेनर हूँ, एंड थोड़ा बहुत हम दूसरे कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानते हैं। बट एज ए स्पेशलाइजेशन, जैसे कोई हार्ट का डॉक्टर है, वो पहले MBBS करता है, बाद में डॉक्टर बनता है। ठीक है, अब हार्ट के डॉक्टर के पास कोई चला गया और बोलता है कि भाई मुझे ना आंख दुख रही है, तो बोलेगा भाई तू आंख के डॉक्टर के पास जा। बोलेगा अरे यार तू कैसा इंसान है, डॉक्टर हार्ट का है और मेरे को आंख की एक दवा नहीं लिख के देता है। बोलेगा भाई अगर मैं दवा लिख के दे दूंगा तो हो सकता है तेरी आंख चली जाए। तो बंदा तो MBBS है, मगर MBBS करने के बाद स्पेशलाइजेशन किया है। तो आई विल स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू AWS रिलेटेड एंड टू व्हेन आई टेक VMware ट्रेनिंग VMware रिलेटेड, क्योंकि हम Azure में मेरे पास स्किल सेट नहीं है। ओके, No, I'm not asking about Azure. one minute, I'm very far from Azure, and another thing is that for VMware, और VMware का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर Hyper-V, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं Hyper-V पे देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मतलब ना मैं अपनी फील्ड में एकदम हो गया, अंदर चला गया, Azure में एकदम अंदर चला गया VMware में। तो अपने पास ये टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम दूसरे लोग को देख पावे।
बट बाय द वे ये है कि ऐसी कुछ भी अगर कुछ बंदे की क्वेरीज रहती है तो हम आंसर करने की क्वेश्चन कर रखते हैं, आंसर कर देते हैं, बट मेन रीजन ये है कि हम सिर्फ एज्योर की तरह बात करेंगे और सिमिलर, देखो आप AWS में जाओ, एज्योर क्लाउड में जाओ, गूगल क्लाउड में जाओ, IBM क्लाउड में जाओ, हर क्लाउड में ना मैक्सिमम फीचर सेम है। यानी अगर आप AWS पे काम करते हो तो आप एज्योर पे इजीली काम कर सकते हो। मतलब Yes. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यू कैन इजीली वर्क, क्योंकि सबके अंदर कॉन्सेप्ट वही है मगर सबका GUI और काम करने का तरीका अलग है। तो Yeah. AWS लीडर है और दूसरे सब लोग ने वही क्लाउड को कॉपी करके बनाया। गेटिंग द पॉइंट? नहीं, माय क्वेश्चन इज दैट जैसे कि मैं कंपेयर कर रहा था, जैसे कि एज्योर में एज्योर एडी कनेक्टर है, AWS में क्या फीचर है, ऐसा कौन सा सर्विस वही है मैंने जो कि आपको हम लोग बोला ना, एडी कनेक्ट है एज्योर के अंदर जो भी रहेगा, मगर अमेज़न के अंदर एडी कनेक्टर करके एक ऑप्शन। ओके 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 ओके, एक बंदा सचिन ने बोलता है कि AWS का कुछ सिलेबस चेंज हुआ है। देखो एक्चुअली ना AWS का फेब 2018 में भी सिलेबस चेंज हुआ था। सिलेबस चेंज होना मतलब क्या है ना, खाली उनका एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है, ऑलमोस्ट टॉपिक रिमेन सेम, ऑलमोस्ट सर्विसेज रिमेन सेम, ठीक है ना। सो हम लोग तो सिलेबस में वो सब कुछ करते हैं जो सिलेबस में नहीं होता है। जैसे आज आपने डेमो लेक्चर में देखा रहेगा, मैंने बहुत कुछ आपको डिस्कस किया। अभी जैसे इसमें वर्चुअलाइजेशन का कोई नॉलेज रखता है, तो जिसको वर्चुअलाइजेशन नहीं भी आता, हम AWS पढ़ाते पढ़ाते वर्चुअलाइजेशन भी पढ़ा देते हैं। तो आप टेंशन मत लो, हमारे पास सिर्फ फरवरी 2018 तक का भी डम्स था। मार्च वाला नया डम्स भी आएगा, हम आपके साथ वो भी शेयर कर देंगे। क्वेश्चन आंसर है, उसके नीचे जस्टिफिकेशन दिया रहता है, तो डोंट टेक टेंशन। आपके पास इतना सारा नॉलेज हो जाएगा कि आप कोई भी डम्स पढ़ के उसको समझ सकते हो क्वेश्चन आंसर, और इजीली आप एग्जाम भी पास कर लो। अब लेक्चर क्लोज मैं करने जा रहा हूँ। फरहान बोल रहे हैं, आई वांट टू आस्क यू। फरहान कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? Hello. यस। So myself, Irfan, I want to ask you one query. Uh, so actually, my request is that when you before starting the class from tomorrow, like if you can explain, if you can share what all the topics we will be covering, like what are the services, EC2, IAM, and all what. You can go to attariclasses.in website, and there you will get the course and syllabus. Okay. You select the AWS course, you will get the syllabus. Okay. Okay. Another thing is that Nitin Mahalim, Nitin is connected to us. Yes, Farhan Khan is connected. Farhan Khan, are you there? Web पे बता रहा है connected. Irfan Sheikh is connected. Sachin Kadam is connected, and Soumya Sahu is already connected. Abhijit is connected. Narendra Kadam is there, and Kiran Kumar. Kiran Kumar is Kiran Kumar. Kiran Kumar है कि नहीं है? And Ismail Sheikh is Sunil Yadav. Okay, so and Kiran Kumar is Kiran Kumar. Can you rename yourself to from Chalta Laptop to Kiran Kumar? So it will be very much easy for us. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so everybody is done. Tomorrow, Farhan Khan, you have an ICICI debit card, so you can check ICICI debit card से आपका lecture चलेगा, and कोई issues नहीं। आपका debit card से अगर account create हो जाता है, आपका 2 rupees, जितने भी लोग account बनाएंगे ना, उनका 2 rupees credit card पे deduct होगा, and after again you will get that credit of 2 rupees. अगर आपके पास debit card है तो आप बनाओ कि देखो account आपका चल जाएगा। अगर in case debit card नहीं चलता है तो इरफान शेख ने कहा है कि उसके पास एक्सिस का डेबिट कार्ड था, चल गया। मैंने आपको बोला ना, प्राइवेट बैंक से जितनी ICICI, HDFC, कोटक, एक्सिस है, जो प्राइवेट लीडिंग बैंक से, उनके कार्ड चल जाएंगे। और अगर नहीं चलता है तो आप किसी फ्रेंड वगैरह से क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो बाय द वे, थैंक्स एवरीबॉडी फॉर लेक्चर। और किसी को कोई भी क्वेरी दे, फरहान खान वगैरह, तो आप शाहबुद्दीन सपोर्ट टीम का बंदा है, उसको कॉल कर लो। अगर आपको कभी भी कोई भी इश्यूज रहेगा तो ट्रेनर का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था, आप ट्रेनर को व्हाट्सएप कर दो टेक्निकल क्वेरीज के लिए। और सपोर्ट की कोई भी क्वेरीज है तो आप शाहबुद्दीन को राउट कर सकते हो, जिन्होंने आपको कल व्हाट्सएप किया था, कॉल किया था, ठीक है। सो एवरीबॉडी इज डन। Can you everybody share the feedback? Any difficulty faced while listening audio video? Everything is working fine for everyone. Please share your feedbacks on chat fast. सब लोग चैट पे जरा फीडबैक डाल दो फर्स्ट ट्रेनिंग का कि कैसा था। और ऑडियो ब्रिज पे कनेक्टेड थे, किसी को ऑडियो ब्रिज अच्छा लग रहा है? क्योंकि ऑडियो ब्रिज पे बहुत कम लोग कनेक्टेड थे, पहले 3-4 लोग कनेक्टेड थे, अभी सिर्फ एक ही बंदा कनेक्टेड है। तो फिर हम ऑडियो ब्रिज यूज ही नहीं करेंगे कल से। और सब लोग अपने अपने गो टू मीटिंग के वॉइस वगैरह का क्लियरिटी का सब बता दो। इरफान शेख का आ गया है, किरण का आ गया है, दूसरे लोग का बाकी है। सो कैन अदर पीपल all was okay, and issue in voice is going to you. Okay,
I was on demo. Thank you. No, there no issue. Everything is fine. Demo was nice. Okay. फरहान भाई, ऐसा हो सकता है कि जब ट्रेनर से आप बात करो तो आप चैट कर दिया करो. नरेंद्र कदम, ठीक है. फरहान का टेंशन मत लो. जनरली ये होता है कि यूजर की वॉइस ट्रेनर तक नहीं पहुंचती है, तो आप चैट में डाल दिया करो. बट ट्रेनर की वॉइस तो आप लोग सबको मिल रही है ना, विदाउट एनी इश्यूज. यस सर, यस सर. अदर पीपल आर देयर, मतलब कुछ लोग का रिप्लाई ही नहीं आ रहा है. तो नितिन है, नितिन. सो ऑडियो ब्रिज कितने लोगों ने ऑडियो ब्रिज पे कनेक्ट हुआ है कि सब लोग गो टू मीटिंग पर ही है? एनीबॉडी हु हैज यूज्ड ऑडियो ब्रिज? So audio bridge पे connect हुए थे लेकिन get disconnected after 45 minutes. क्या बोल रहा है? ऑडियो ब्रिज पे कनेक्ट हुए थे पर वो 45 मिनट्स के बाद डिस्कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली. फिर वापस आपने डायल नहीं किया ना? नहीं सर. ओके. आपका फरहान, आपको अगर मेरी आपकी वॉइस नहीं आ रही तो आपका माइक डिसेबल रहेगा, माइक म्यूट पे रहेगा. आप चेक कर लो तो आपका चलेगा वॉइस. फरहान 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 फरहान, अभी आपका वॉइस जो है ना वेब पे दिखा रहा है. क्या मालूम, सबका पीसी दिखा रहा है, आपका वेब दिखा रहा है. आप अनम्यूट करके देखो, आपके वेब पे आपका वेब दिखा रहा है. गो टू मीटिंग में खाली फरहान का ब्रैकेट में वेब लिख कर आ रहा है, दूसरे सबका नॉर्मल दिख रहा है. वेब मींस फरहान ने कुछ अलग तरीके से कनेक्ट किया है. गो टू मीटिंग का शायद एप्लीकेशन वगैरह नहीं डाला. ऑडियो ब्रिज, हाँ, नरेंद्र कदम का कहना है कि ऑडियो ब्रिज इज गुड है. दूसरे लोग को वॉइस क्लैरिटी सही था तो फिर हम कल ऑडियो ब्रिज नहीं यूज करेंगे, बिकॉज ऑडियो ब्रिज पे सिर्फ आज एक ही बंदा अभी तक मुझे कनेक्टेड दिख रहा है. अगर किसी का ऑडियो ब्रिज डिस्कनेक्ट हो गया तो वापस डायल इन कर सकता है पासपोर्ट से, किसका अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो. मगर अभी मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ एक ही बंदा कनेक्टेड है और कोई कनेक्टेड नहीं है. सो कैन वी गो अहेड ओनली विद गो टू मीटिंग? इज दैट फाइन? Yes. Yes sir. Yes. Okay, okay. So let's close the session. Any question? Please put on chat. Yes. So recording sir इस सेशन के बाद मिल जाएगा ना? हाँ, अभी मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. सपोर्ट टीम शेयर कर देगा. Okay, okay. Thank you. ठीक है, चलो. आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर. Bye bye.